جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دوسری معاملے کی طرف آتے ہیں۔ جلد ادائیگی کی وجہ سے متعلقہ رقم کم کروانے کا مطالبہ ہے۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اس صورت پہلے دیکھ لیجیے گا ابھی کی جی۔ بعض اوقات ادھار خریداری کا معاملہ کرتے وقت معاہدے میں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر مقررہ مدت سے پہلے یکمشت ادائیگی کی گئی تو قیمت میں کچھ کمی کر دی جائے۔ اچھا، یہ معاملہ توجہ کے ساتھ سمجھ جائے۔ یہ باقاعدہ ابھی کیمیکل مارکیٹ میں، چمڑا مارکیٹ میں، پوری کی پوری مارکیٹ کے اندر یہ بات رائج ہے کہ آپ نے اگر ایک چیز لی ہے 90 دن کے ادھار پر اور 1 مہینے کے اندر اندر آپ پیمنٹ کریں گے تو یہ 4% ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا۔ اس کو اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں ریبیٹ بھی کہتے ہیں، اور ایک اور اصطلاح چلتی ہے مارکیٹ کے اندر جس کو ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ بھی کہتے ہیں، ارلی ڈسکاؤنٹ بھی کہتے ہیں، ارلی پیمنٹ ڈسکاؤنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو ارلی ڈسکاؤنٹ جلد ادائیگی کی وجہ سے یہ وہ صورت ہے جو آپ علماء طلباء کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں کہ دعوت عجل کی صورت یہ ہے کہ جلدی پیمنٹ کرو اور کچھ کمی کر دو۔ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز؟ پھر وہی بات ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس کے ناجائز ہونے کی صورت کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ناجائز ہے کہ نہیں۔ اس میں ایک بنیادی بات کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا آپ، بہت بنیادی بات ہے۔ اسی کی بنیاد پر ایک اور چیز کا فیصلہ ہوگا۔ وہ کس چیز کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ دیکھیے، آپ اس چیز کو دیکھیے گا، سمجھیے گا کہ جب ابھی ایک چیز کا سودا نہیں ہوا، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں قسطوں کا کاروبار جائز ہے ناجائز؟ عام طور پہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے یا ناجائز؟ تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ تو کیوں ناجائز ہے؟ کہتے ہیں نقد لوگے تو 100 کا، ادھار لوگے تو 110 کا۔ تو 10 روپے چونکہ ادھار کی وجہ سے ہے، اور ادھار کی وجہ سے جو پیسے میں اضافہ کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قسطوں پر، انسٹالمنٹ کے اوپر خرید و فروخت اس وجہ سے سمجھتے ہیں ناجائز۔ جب ان سے اس پہ تفصیلی مذاکرہ ہو تو بڑے حیران ہوئے۔ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو میں بتا رہا ہوں پہلے اس کو سمجھیں گے تو اس کو سمجھیں گے، ورنہ بات وہ آپ کو قابو میں نہیں آئے گی۔ مسئلہ کیا ہے پہلے اس کو سمجھیں۔ دیکھیے، یہ چیز موبائل میرے ہاتھ میں ہے اس وقت۔ اب آپ اس موبائل کو خریدنا چاہتے ہیں، میں موبائل کو بیچنا چاہتا ہوں، لیکن اس موبائل کو خریدنے اور اس کو بیچنے کی مختلف قسم کی شرائط کی مثال ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ موبائل دے کہ میں نے موبائل دوں گا، کہتے ہیں جی اس موبائل کی وارنٹی ہے، میں کی وارنٹی ہے، کہتے پھر تو میں اس کے 30,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اس موبائل کی وارنٹی نہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں پھر تو میں اس کے 25,000 دے دوں۔ اب اس موبائل کی قیمت میں کمی بیشی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ آپ کہتے ہیں کہ جی اس موبائل کو میں خریدوں گا تو صحیح، لیکن یہ موبائل آپ مجھے میرے گھر پر ڈیلیور کروائیں گے۔ میں نے کہوں گا اجے تو آپ اس موبائل کو گھر پہ چاہتے ہیں تو پھر اس کی پرائس 30,000 نہیں بلکہ 32,000 روپے ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں کہ جی اس موبائل میں آئندہ اگر کوئی خرابی نکل آئی تو وہ بھی آپ ٹھیک کروا کے دیں گے، وارنٹی والی بات ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ آفٹر سیل سروس بھی چاہیے تو پھر میرا یہ ریٹ ہوگا۔ اب ایک ہی چیز کی مختلف وجوہات کی وجہ سے ریٹ میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کب تک ہوتی ہے؟ جب ابھی آپ کا سودا نہیں ہوا۔ اب میں نے موبائل کو طے کر لیا، یہ بات طے ہو گئی کہ یہ موبائل میں نے آپ کو 30,000 کا بیچ دیا،
5,000 रुपए माहाना किस्त पर, और अब ये 30,000 रुपए का मोबाइल माहाना 5,000 की किस्त पर आपने 6 महीने में देना। ठीक। अब 5,000 रुपए आपने इस महीने की किस्त दी, बाकी कितने रह गए? कितने रह गए ना? ये 25,000 जो आपके जिम्मे बाकी रह गए, ये चार में से क्या बन रहा है? याद आ गया? कर्ज, बैर, अमानत, सरमायाकारी क्या बन रहा है जी? कर्ज तो वो है जो पैसे दिए, पैसे दिए। क्या बन रहा है जी? दैन बन रहा है। 25,000 रुपए दैन। अब ये जो दैन बन रहा है, इस दैन के अंदर मुद्दत की कमी बेशी की वजह से जो आप उसमें इजाफा या कमी करेंगे, ये पैसे के मुकाबले में होगा, ये जायज। एक दफा कीमत को तय कर लिया, मुद्दत को आपने तय कर लिया, कीमत और मुद्दत को तय करने के बाद मुद्दत में कमी बेशी की वजह से दोबारा से अब कीमत में कमी बेशी करना क्या है? ये जायज नहीं। अगर उसने कहा 6 महीने नहीं, अब मुझे 7वां महीना चाहिए, तो मैं कहता नहीं 7वें महीने के पैसे 35,000 रुपए होंगे। अब ये 5,000 रुपए मैं किसके बदले में ले रहा हूँ? इजाफी मुद्दत के बदले में ले रहा हूँ। तो 30,000 रुपए तो मोबाइल की कीमत तय हुई थी, उस 30,000 में मुद्दत के पैसे तय नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही एक महीना इजाफी जाता हूँ, तो आप पैसे बढ़ा देते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं आपको 6 महीने में नहीं, मेरी कमेटी निकल आई है, इसलिए मैं आपको 6 महीने में नहीं, मैं 5 महीने में पेमेंट करूंगा। अब आप क्या करो? मोबाइल कितने का होना चाहिए? 30 के बजाय 25 का होना चाहिए। तो अब ये 5,000 रुपए की मैंने कमी करवाई, किसके बदले में करवाई? मुद्दत के बदले में करवाई, वक्त के बदले में करवाई। अब ये क्या हो जाएगा? ये दोनों तरफ से क्या है? जायज नहीं है। इसको माशियात की इस्तिलाह में, इकोनॉमिक्स की इस्तिलाह में टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। इसको भी समझिएगा बात, ये बात बहुत अहम है। आप तुलबा को भी समझने की जरूरत है, हमारे दीगर हजरात हैं उनको भी समझने की जरूरत है। जदीद मईशत या जदीद माशी नजरियात वो कहते हैं कि पैसे की अपनी एक हैसियत है, पैसे की अपनी कीमत है, पैसे की अपनी एक वैल्यू है। इसको वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी। पैसे की, जैसे ये मोबाइल की अपनी एक अफादियत है, मैंने कपड़े पहने हैं, कपड़े की अपनी एक अफादियत है, मैंने ऐनक पहनी हुई है, ऐनक की अफादियत है, मेरे सर पे टोपी है, टोपी की अफादियत है, मेरे पाँव में जूते हैं, जूते की अफादियत। जैसे हर चीज की अशिया और अजनास की अफादियत है, जदीद मईशत कहती है पैसे की अपनी अफादियत है। और जैसे अशिया का किराया हो सकता है, घर का किराया हो सकता है, गाड़ी का किराया हो सकता है, इंसान की खिदमत का मुआवजा हो सकता है, तो इसलिए पैसे के इस्तेमाल करने का भी क्या हो सकता है? मुआवजा हो सकता है। मैं समझ आ गई? ये सोच है जदीद। ये 100% जो सोच है ना, ये इस्लाम और शरीयत के मुकाबले में पूरी दुनिया के अंदर इस फासिद और बातिल सोच कि पैसा खुद अपनी जात में कोई कीमत रखता है, इस फासिद और बातिल सोच का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो इस्लाम। लंबी कहानी है, क्योंकि मेरा मजमून इकोनॉमिक्स भी है। मैं अगर इस तरफ चल पड़ा तो फिर इस तरह की कैपिटलिज्म, सरमायादार निजाम, उस पर लंबी कहानी हो जाएगी, हम वापस लौट कर आते हैं। इसलिए शरीयत कहती है अजनास की, अशिया की, चीजों की, इसको अंग्रेजी जबान में कमोडिटी कहते हैं। कमोडिटी की तो कीमत हो सकती है, मुद्दत की अपनी कोई कीमत नहीं है। पैसे अगर किसी आदमी ने ताखीर की, आपने घर 6 महीने में खाली करना था, आपने 7वां महीना भी लगा, तो किराया दे सकते हैं? 7वां महीना घर इस्तेमाल करना, घर का तो किराया ले सकते हैं ना। तो इधर आपने एक आदमी का जबरदस्ती घर इस्तेमाल कर लिया, एक गाड़ी आपने एक दिन के किराए पर ली, 2 दिन गाड़ी इस्तेमाल की, दूसरे दिन में किराया देगा नहीं देगा? उजरत वैसे लाजिम आएगी, मशहूर मसला है। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी है उसकी इस्तेमाल के लिए। पैसे अगर किसी आदमी ने ताखीर कर दिए, तो पैसे की अपनी कोई कीमत नहीं है कि पैसे की ज्यादा ताखीर से देने से तुमने मेरे पैसे का नुकसान किया। अगर ये पैसे मेरे पास होते तो मैं पैसे से इतना कमा लेता। इसको अरबी जबान में तलबा के लिए कहना हो,
اس کو عربی زبان میں الفرصۃ الضائعہ کہتے ہیں، اپرچونٹی کاسٹ انگریزی زبان میں۔ ہمارے پاس پیسے کی کوئی اپرچونٹی کاسٹ نہیں ہے۔ الفرصۃ الضائعہ یہ موقع، امکان، احتمال کہ میرا پیسہ تھا، پیسہ اگر ملتا تو میں استعمال کرتا، اب یہ ڈسکاؤنٹ کیوں لے رہا ہے؟ میں تم کو پیسے لا کر دے رہا ہوں، جلدی پیسے دے رہا ہوں، اور تم سے ڈسکاؤنٹ کیوں مانگ رہا ہوں؟ کیونکہ میں تم کو موقع دے رہا ہوں کہ تم ایک مہینہ پیسے استعمال کر کے کیا کرو، کما لو گے، اس میں مجھے ڈسکاؤنٹ دو۔ تو چونکہ یہ سوچ ہی کیا ہے، درست نہیں ہے، اس لیے شریعت یہ دونوں چیزوں کو نہیں مانتی۔ اگر کسی آدمی نے تاخیر کی، تاخیر کرنے والا گناہ گار ہو رہا ہے، لیکن آپ اس سے جرمانہ نہیں وصول کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ معاملے کی شرعی حیثیت یہ لکھا ہوا ہے کہ اس قسم کی شرط لگا کر یا مطالبہ منوا کر قیمت میں کمی کا یہ معاملہ کرنا جائز نہیں، سود کے زمرے میں آتا ہے، البتہ جلد ادائیگی کی صورت میں بغیر کسی شرط اور مطالبہ کے فروخت کنندہ خود اپنی طرف سے کچھ رقم معاف کر دے تو ایسا کرنا شرعاً درست ہے، اور یہ صورت سود کے زمرے میں نہیں آتی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے تھا، سوال ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو کیا خیال ہے؟ ہوا نہیں ہوا، کیا خیال ہے؟ ہاں کہہ دیں تو سوال بتا دیں، نہیں بتا کے چلتے ہیں، کیونکہ مشقت والا کام ہے، سوال بھی میں پیدا کروں پھر جواب بھی میں دوں، دونوں دوہرا بوجھ میں کیوں اٹھاؤں بھائی؟ کوئی ایک بوجھ آپ اٹھا لیں، دوسرا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ سوال اٹھا نہیں اٹھا، آگے چلیں۔ اب وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں آگے چلیں۔ جی حضرت کے ساتھ سنائیے۔ جی جی، یہ تو ہاں ایک شرط یہ ہے کہ بغیر کسی شرط کے پہلے سے طے نہ ہو۔ ایک آدمی نے لا کے جلد پیسے دے دیے، اس نے کہا کہ چلو اس نے جلدی کر دیا، میں اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہوں بغیر شرط اور مطالبے کے، تو ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے ویسے۔ اس میں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، عام طور پہ اسکول کی فیس میں یہ شرط ہوتی ہے، 10 تاریخ تک آپ نے اسکول کی فیس ادا کی تو 4,000 روپے، اگر نہیں دی تو 4,500 روپے آپ سے، یا ہر دن کے اعتبار سے اضافی پیسے وصول کیے جائیں گے، ہوتا نہیں ہوتا؟ بلس کے اندر ہوتا ہے، فلانی تاریخ کا بل ادا کر دیا تو اتنا ہے، گیس کا بل، بجلی کا بل، باقی بل، یہ سب کیا ہے، اس کے مطابق ناجائز، اس کے مطابق کیا ہے، ناجائز۔ اس کا جائز حل کے بڑے بڑے اسلامک اسکول کے اندر بھی مسئلہ آتا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا، ان کو بتایا تو پھر حیرت ہوئے کہ کیا تاخیر سے فیس کے ادا کرنے پہ ہم جرمانہ نہیں لگا سکتے؟ یعنی فیس کی تاخیر سے کرنے پر آپ جرمانہ نہیں لگا سکتے، شرع وجہ کیا ہے وہ تفصیل میں نے آپ کو بتائی۔ اگر کسی آدمی کے پیسے آپ نے تاخیر سے ادا کیے تو تاخیر سے ادا کرنے پہ جرمانہ لگانا جائز نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ موٹر سائیکل اسکیم کا حکم، اس کو توجہ کے ساتھ ملے گا، پہلے میں پڑھ لیتا ہوں، وہ لکھا نہیں اس کے اندر۔ موٹر سائیکل اسکیم کی شرعی حیثیت پہ لکھی، اچھا اس کو میں بتاتا ہوں، موٹر سائیکل اسکیم ہے کیا، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں اس کو جانتے نہیں جانتے۔ ایک اسکیم عام طور پہ نکالی گئی ہے، توجہ کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں۔ اسکیم یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 200 بندے ہیں، 200 بندے اب قرعہ اندازی میں داخل ہوتے ہیں، ماہانہ 2,000 روپے وہ ادا کریں گے، اور یہ 2,000 روپے مثال کے طور پہ 2 سال تک چلیں گے، اور 2 سال تک مثال کے طور پہ ہر مہینے 2 موٹر سائیکل، تو 50 بندوں کو موٹر سائیکل ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ ملے گی پر اندازی کے ذریعے۔ اب مثال کے طور پہ پہلے آدمی نے 2,000 روپے جمع کروائے، یا 2 آدمی نے 2,000 روپے جمع کروائے، اور پہلے ہی دفعہ ان کی پر اندازی میں نام نکل آئے، تو ان کو موٹر سائیکل کتنے روپے کی پڑی؟ بس آپ نے جو اگر تھوڑا دن نام نکالا پھر آپ کو مزید پیسے نہیں ملے، ٹھیک ہے؟ اچھا جس آدمی کے دوسرے مہینے میں موٹر سائیکل نکل آئی اس کو کتنے کی پڑی؟ 4,000۔ اور جس کی تیسرے مہینے میں نکل آیا اس کی کتنے کی پڑی؟ 10,000۔ اور کس طرح 40-50 بندوں کو تو قراردادی کے ذریعے سے دیں گے، اور اس کے علاوہ جو بندے ہیں ان کو پوری قیمت پر دیں گے۔ اب سب آدمی اس میں شامل اس لیے ہوتے ہیں اس امید پر، بیٹا آپ آگے آ جائیں،
आप आगे आ जाइए, आप लोग पीछे बैठे, आगे आगे आ जाइए, बहुत जगह है, आप लोग ताकि आराम से बैठ कर देखना जरूर करें, ठीक है। मेरी बात समझे ना, आप नहीं समझ रहे। अब सवाल ये हुआ कि ये जायज है नाजायज। आप पैसे ले रहे हैं, पैसे लेकर पूरा अंदाजे के मुताबिक आप मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं, और मोटरसाइकिल जिस जिसकी निकलती जाती है, बकिया पैसे आप उसको माफ कर देते हैं। जायज है नाजायज? जी, कह रहे हैं नाजायज या जायज? नाजायज। नाजायज होने की वजह क्या है जी? जिसको पहले मिल गई तो फायदा हो गया, तो उसमें क्या खर्च है, अच्छी बात है, लोगों को फायदा करना। जी, एक हमारे भाई ने कहा कि उसका फायदा हो गया, दूसरों का नुकसान हो गया। दूसरे साथी हमारे कह रहे हैं कि उसकी मालियत कितनी नहीं थी जितने की चीज आपको मिल गई। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा और सोचिएगा। मजीद अगर किसी दूसरे का फायदा हो जाए, सबको मोटरसाइकिल सबको मिल रही है, ऐसा नहीं है कि इसको मोटरसाइकिल मिली इसको नहीं मिली। बस ये है कि इसको डिस्काउंट में मिली, उसको डिस्काउंट में नहीं मिली। मिलेगी सबको मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल सबको मिलेगी, और जिस मार्केट प्राइस पर बिल आपको मार्केट प्राइस पे मिल जाएगी। अलबत्ता यह है कि जिसके नाम निकल आते जाएंगे उसको मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पे मिल जाएगी। नहीं बस जी, तयशुदा ही होता है, पहले से तयशुदा है। अगर तयशुदा है तो फिर जायज जायज करते हैं इसको, या नाजायज ही रहने दें फिलहाल? जी, कहते नाजायज है, तो वजह बताएं। एक कह रहे हैं कि इसमें किमार का पहलू, बहुत अच्छी बात बताई, जुए का पहलू है, क्योंकि हर आदमी 2-2 हजार रुपए महीने में किस लिए लगा रहा है, इस उम्मीद के ऊपर कि शायद मेरे निकल आए। तो बाज को तो निकला, बाज का नहीं निकला, एक मसला ये है। लेकिन इसमें बहुत बहुत अंदर की बातें बताता हूँ भैया, और किसी के जरूरत तो बता रही तो बताएगा। हाँ, अब इसके अंदर दो मसले हैं, अब समझिएगा माशाल्लाह से, आप हजरात अच्छा इसमें साथ दे रहे हैं। इसको पढ़ लेते हैं जो आगे लिखा है। इस स्कीम को चलाना और इसका मेंबर बनकर मोटरसाइकिल खरीदना शरअन नाजायज है, क्योंकि जमा कराई जाने वाली रकम अगर मोटरसाइकिल की कीमत हो तो ये अकद बै के बाद होगा, और बै में बवक्त अकद नबी और समन मुतय्यन होना जरूरी होता है, जो कि यहाँ नहीं होता। अब ये जो जुमला है इसको दोबारा सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है। तो ये अकद बै के बाद होगा। बै का होगा, बै किसे कहते हैं, सौदा, खरीदो फरोख्त करने का जो आप सौदा करते हैं, इसको हमारी शरीयत की इस्तिलाह में, फिक़ह की इस्तिलाह में बै आइन के साथ बै कहते हैं कि ये सौदा हो गया। अच्छा, जब सौदा करते हैं तो शरीयत आपको पाबंद करती है। शरीयत किस चीज का पाबंद करती है? एक तो यह है कि कीमत को मुतय्यन करो, दूसरी यह है कि जो चीज खरीदी जा रही है उसको मुतय्यन करो, और तीसरी बात, अगर इसमें उधार है तो मुद्दत को मुतय्यन करो। कितनी चीजें मुतय्यन करो? तीन चीजें। कितनी चीजें मुतय्यन करो? तीन चीजें। वो तीन चीजें कौन सी हैं? कीमत सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो चीज खरीदी जा रही है, अब अगर मिसाल के तौर पे 100 मोटरसाइकिल खड़ी है, तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ, वो कहते हैं हाँ जी, ये वाली नंबर, ये चेसिस नंबर, ये इंजन वाली नंबर, ये मोटरसाइकिल हमने आपको दी, अब सौदा होता है। मैं यामाहा वालों के पास गया, होंडा वालों के पास गया, 100 मोटरसाइकिल खड़ी है, या एक दे दो, मैं कहा जी, एक दे देंगे, क्या प्राइस कीमत तय हुई? अभी सौदा नहीं हुआ। अब जिसमें तो कहेगा ना कि ये वाली मोटरसाइकिल, कीमत तय होने के बाद जब वो मेरे नाम की पर्ची काटेगा ना कि हमने ये चेसिस नंबर की ये वाली मोटरसाइकिल आपको दी, तो मोटरसाइकिल क्या हो गई? मुतय्यन, 100 में से मुतय्यन हुई, अब ये चीज सौदा हुई। तो चीज को मुतय्यन करो, चीज मुतय्यन करो, कीमत मुतय्यन करो, और तीसरी बात क्या है, अगर उधार है तो क्या करो? मुद्दत को मुतय्यन करो। अब यहाँ पे तीनों चीजें मजहूल है, क्योंकि कीमत हो सकता है 2 हजार हो, और हो सकता है कि पूरी 60-70 हजार हो। है नहीं बात समझ में? अब कीमत हकीकत में कितनी है, ये पूरा अंदाजी के बाद पता चलेगा। अकद पहले कर लिया
معاملہ پہلے کر لیا، لیکن معاملہ کرنے کے بعد ابھی آپ وہ قیمت 100% طے نہیں ہے تو قیمت مجہول ہو گئی، ایک خرابی تجھے لازم ہے۔ ابھی مجھے کون سی موٹر سائیکل ملی ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے، تو جو مبی جس چیز کو خریدا اور بیچا جائے اس کو ہماری شریعت کی اصطلاح میں مبی کہتے ہیں، وہ بھی مجہول ہو گئی۔ تیسری بات، ہو سکتا ہے مجھے اس مہینے ملے اور ہو سکتا ہے 2 سال بعد ملے، تو کب ملنا ہے یہ بھی طے نہیں ہے، تو تینوں چیزیں مجہول ہوگی نہیں ہوگی، قیمت بھی مجہول، مبی جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بھی مجہول، اور مدت بھی کیا ہے، مجہول۔ جو تینوں چیزیں مجہول ہوگی تو شریعت کا معاملہ کیا ہے، ناجائز۔ آگے چلیے گا، اچھا آگے، آگے کیا تھا، آگے یہ اہم آ گیا تیسرا، قرض دے کر گروی پر رکھے ہوئے مکان کو استعمال کرنا۔ گروی والا مکان تو پتہ ہے آپ لوگوں کو، ہوتا نہیں ہوتا، اکثر ہوتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ گجرانوالہ کے اندر یہ کام نہ ہوتا، لاہور میں بے تحاشا ہوتا ہے۔ میں طلبا کے لیے عرض کر دیتا ہوں، کسی کو نہیں پتا گروی والے مکان کا، نہیں پتا، کس کو نہیں پتا، ہاتھ کھڑا کریں، کس کو نہیں پتا، شاباش، آپ کو بھی نہیں پتا، چلو اچھی بات، جس کو نہیں پتا وہ محسن ہے، کیونکہ پتا مجھے پتا ہے بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، لیکن جو ہاتھ کھڑا کرتا ہے اس کے ذریعے سے دوسروں کو پتا چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس 20 لاکھ روپے، میرے پاس گھر نہیں ہے، اب میں جاتا ہوں 20 لاکھ روپے سے گھر خریدنے کے لیے، تو آپ کا کیا خیال ہے 20 لاکھ میں مجھے گھر مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ اب میرے میرے پاس 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ ہے، اگر میں یہ 10 لاکھ 15 لاکھ اگر میں کرائے میں دیتا رہوں تو 10 15 سال کے بعد کیا ہوگا، پیسے ختم ہو جائیں گے، میں پھر بھی کرائے کے مکانوں میں ختم ہوگا۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ 10 15 لاکھ روپے میرے محفوظ ہو جائیں، میں اور بھی پیسے جوڑتا رہوں، یہ پیسے بھی محفوظ ہو جائیں اور کوئی جگہ بھی نیچے ٹھکانے کی مل جائے۔ اچھا دوسرا آدمی ہے، اس کا کاروبار ہے اور کاروبار اچھا چلتا ہے، آرڈر آتے ہیں، اس کو پیسے چاہیے کاروبار کے لیے، لیکن اگر اس نے گھر بیچ دیا تو کاروبار تو چل پڑے گا، لیکن چھت چلی گئی، گھر چلا گیا، ایک اثاثہ تھا، ایسٹ تھا، وہ چلا گیا، تو بعد میں گھر کیسے بناؤ گا، مشکل ہو جائے گی۔ وہ گھر بیچنا نہیں چاہتا، پیسے تو چاہتا ہے گھر میں، اب درمیان کی صورت نکالی، اس نے مجھ سے کہا کہ تم 20 لاکھ 15 لاکھ روپے مجھے قرض دے دو، قرض دے دو یا مجھے ویسے استعمال کرنے کے لیے دے دو، اور تم میرا گھر لے لو۔ مجھے پیسے مل گئے، تم کو گھر مل گیا، تم یا تو کرایہ مت دو یا کرایہ کے اندر معمولی سا 4 5 ہزار روپے میں کرایہ رکھ دوں گا، بس برائے نام کچھ کرایہ رکھ دوں گا، اس کو ڈسکاؤنٹ دے دوں گا، تو کرایہ تھوڑا سا رکھ دوں گا، تم گھر استعمال کرتے رہو، اور 10 15 سال کے بعد تمہارے پاس پیسے اکٹھے ہو جائیں گے تو تم مجھے میرا گھر واپس کر دینا اور اپنے پیسے لے کر تم چلے جانا۔ تو اس کو، کاروباری کو کاروبار کے لیے پیسے مل گئے، مجھے رہنے کے لیے گھر مل گیا، اور میرے 10 15 لاکھ روپے کیا ہو گئے، محفوظ بھی ہو گئے۔ جائز ہے نہ جائز؟ جی، یہ اتنی رفاہ عامہ کا کام ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ اب تو اس کو جائز کر دینا چاہیے۔ ایک آدمی کے پاس ٹھکانہ نہیں، اس کو ٹھکانہ مل گیا، ایک آدمی کے پاس کاروبار کے لیے رقم نہیں، اس کو رقم مل گئی، تو شریعت تو لوگوں کا فائدہ چاہتی ہے نا، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے مولوی صاحب، یہاں عقل نہیں چلتی، یہاں نقل چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم کیا ہیں، ہم عقل والے نہیں ہیں، ہم کیا ہیں، نقل والے۔ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں، 2 آدمی راضی ہے، 2 آدمی کا فائدہ ہے، شریعت مطہرہ کی نگاہ کے اندر یہ معاملہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی، ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہے تو وجہ بتاؤ، یہ جی مجھے بتائیں، یار یہاں پہ لکھا ہے تو ناجائز بھی ہوگا نا، تو ناجائز ہے تو وجہ بتائے نا، ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہے، کیا خیال ہے؟ یہ ہے اصل چیز، اسی لیے علماء کرام نے کیا لکھا کہ اگر آپ قرض کے بدلے میں کوئی بھی چیز کو گروی رکھیں گے، گروی رکھی ہوئی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ قرض کے ذریعے سے کوئی بھی نفع حاصل ہوگا وہ کیا ہے، سود ہے، وہ نفع پیسوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ نفع استعمال کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے 20 لاکھ روپے دے کر گھر میں رہنے کا نفع اٹھایا، گروی والے مکان سے نفع اٹھایا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کے متبادل بھی دیا ہے ہم نے،
तबादल बताया है, लेकिन वो मौका होगा फिर कहेंगे। तो ये जायज नहीं है, ये आगे बता दिया। अच्छा जी, आगे पुराने नोट देकर नए नोट लेने का मामला। अच्छा, इसमें एक और मसला आ जाएगा। पुराने नोट देकर नए नोट देने का जो मामला है, इसमें एक नया मसला आ जाएगा। अच्छा, उसको समझने से पहले चलो मैं बुनियादी बात अर्ज कर देता हूँ, तवज्जो दीजिएगा जरा, क्योंकि ये मसला आपको ज्वेलरी के अंदर सोने और जेवरात के लेन देन में भी काम आएगा, इसलिए इसको समझ लीजिएगा। अच्छा, वो क्या चीज है? वो ये है कि मिसाल के तौर पर आप, हदीस में आया कि 6 चीजें ऐसी हैं। 6 चीजें कौन सी हैं? सोना सोने के बदले में, चांदी चांदी के बदले में, गंदुम गंदुम के बदले में, जौ जौ के बदले में, और खजूर खजूर के बदले में, और नमक नमक के बदले में। 6 चीजें शरीयत ने बयान कर। ये 6 चीजें जब भी आपस में इनका तबादला होगा तो बराबर सराबर होगा, उधार जायज। सोना दे के सोना लेंगे, बराबर सराबर होगा, उधार जायज नहीं है। चांदी दे के चांदी लेंगे, बराबर सराबर होगा, उधार जायज नहीं है। गंदुम दे के गंदुम लेंगे, बराबर सराबर होगा, उधार जायज नहीं है। जौ दे के जौ लेंगे, उधार जायज नहीं है, बराबर सराबर होगा। इसी तरीके से खजूर और नमक है। 6 चीजें तो हदीस में बयान की, लेकिन चावल का जिक्र दिया। तो चावल का भी ये हुक्म है कि नहीं है? बासमती चावल देके टोटा ले रहे हैं, तो कमी जाती हो सकती नहीं हो सकती? अब ये सवाल। अब यही फुकहा बैठे, जो फुकहा का दिमाग है, तो फुकहा को अल्लाह ने इतना बड़ा दिमाग दिया क्यों? तो वो अहादीस को लेकर फिर उसके हुक्म को पूरी दीगर हर चीज के ऊपर साबित कर। तो इमाम अबू हनीफा, इसमें तफसील है, मैं मोटी बात अर्ज करूँ। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि देखो, 2 चीजें, एक है कदर और दूसरी है जिन्स। अगर जिन्स एक है और वो चीज तुल कर बिकती है या माप से बिकती है, माप का मतलब जैसे एक पैमाना होता है, जैसे लीटर एक पैमाना है, एक पैमाने से बिकती है। अगर उसका माप या तुल कर बिकती है और जिन्स एक है, तो यही हुक्म लगेगा। तो चावल पर भी ये हुक्म लग जाएगा। जब ये बात समझ में आ गई, तो देखिए जो नोट है, एक करेंसी है, रुपया है, इसका वही हुक्म है जो सोने और चांदी का है। कि जब सोना देंगे तो क्या करेंगे? सोना दे के सोना लेंगे तो क्या होगा? बराबर सराबर होगा, उधार नहीं हो सकता। इतनी बात समझ आ गई? जब भी आप सोना दे के सोना लेंगे, इसकी खवातीन क्या करती हैं देखिएगा, अब समझिएगा। खवातीन पुराना पुराना जेवर लिया और ज्वेलर के पास चले गए। उनसे कहा जी ये मैंने बेचना है। तो वो कहते हैं बेच दो, अपनी मेकिंग, बनाई जो होती है, उसको बनाई को काट के कहते हैं बाजी इसके इतने पैसे हों, 8-10 लाख रुपए जो भी होगा। तो वो पूछते जी बाजी आपने कोई और भी खरीदना है? जी खरीदना भी है। तो जी आप दूसरा जेवर पसंद कर। तो बाजी जी ने वो दूसरा जेवर पसंद किया। अब वो उसकी मिसाल के तौर पे कीमत 9 लाख थी, इसकी 8 लाख थी। उसने दोनों के दरमियान में कह दिया कि ये मैंने लेकर ये जेवर दे दिया, 1 लाख रुपए आपने और देना है। अब जायज हो गया नाजायज हो गया? नाजायज। ये नाजायज है। सोना देकर सोना लिया और उसके अंदर कमी बेशी हो गई, ये क्या हो जाएगा? नाजायज है, सूद है। तो ये मसला आज समझिएगा, ये खवातीन को जाके समझाने का है, ज्वेलर हजरात को भी जाके। ज्वेलर ज्वेलरी के बेतहाशा मसाइल, हमने ज्वेलर्स का भी काम किया, बेतहाशा मसाइल। लेकिन अब इस बात को समझ कर अब समझिएगा, पुराने नोट देकर नए नोट लेने में क्या होता है। अगर आप जाएं तो पुराने नोट देकर अगर 10,000 रुपए आप देंगे, तो वो आपको कितने देगा? 9,600 या 700 रुपए देगा। 9,600 या 700 रुपए देगा, नए नोट देगा। तो उसने 300 रुपए आपसे काट लिया। तो आपने कितने पैसे दिए? 10,000। और उसने वापस कितने किए? अच्छा, इसी तरीके से रेजगारी होती है, छोटे छोटे जो वैन वाले होते हैं, बाकी लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि यार हमें खुले पैसे मिल जाए। तो वो 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए के नोट लेके जाते हैं। दूसरा आदमी कहता है कि मैं तुमको एक के 2-2, 5-5 रुपए के नोट दूंगा, सिक्के दे दूंगा, लेकिन क्या करूंगा? पूरे नहीं दूंगा, कम करके दूंगा। अब आपने 5 या 10 हजार रुपए का नोट दिया,
और उसने आपको रेजगारी 2-2 रुपए 5-5, अब 2 रुपए तो पता नहीं शताना बंद हो गया, 5 रुपए 10 रुपए, अब उसने आपको वो सिक्के दे दिए और उसमें से उसने कमी कर ली। तो चूंकि मैंने बंधे हुए नोट ले लिए और आपको मैंने रेजगारी दी, तो नोट देकर नोट लिया और इसमें कमी बेशी हो गई, तो क्या है? सूद है। हाँ, अगर करेंसी दूसरी है, दूसरी करेंसी है, तो ये जिन्स बदल गई। जिन्स अगर बदल जाए, सोना दे के चांदी लो, तो फिर कमी बेशी हो सकती है, लेकिन उधार फिर भी नहीं हो सकता। ये सौदा उधार नहीं हो सकता, इसीलिए अगर करेंसी बदल जाए रुपए और डॉलर के बदले में, तो ये हो सकता है। आगे चलिएगा। ये जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, जरा तवज्जो आपको दिलाती नहीं शर्त का। अब इसमें एक मसला ये आ रहा है कि अगर मुख्तलिफ मोबाइल कंपनी आपसे बैलेंस लेती हैं, ये उसके ऊपर आता है, प्रीपेड में आता है। यू फोन का सबसे पहले था, यू फोन वालों ने सबसे पहले शुरू किया। आपके पास बैलेंस खत्म हो गया, अब वो कहते हैं कि आपको यू फोन का लोन बैलेंस चाहिए। लोन कहते हैं कर्ज, उधार। आप कहते हैं जी वो 10 रुपए 20 रुपए आपको क्या दे देगा? बैलेंस दे देगा। प्रीपेड में ये होता है, पहले आप पैसे देंगे, बैलेंस बाद में आएगा। लेकिन इस सूरत में क्या होता है, पहले पहले आ गया, पैसे आप बाद में देंगे। लेकिन वो कहता था कि अब ये 20 रुपए का जो बैलेंस मैंने आपको उधार दे दिया, अब इसके पैसे क्या होंगे? ये 20 रुपए का नहीं होगा, ये कितने का होगा? 21 रुपए का होगा। तो ये जायज है ना जायज? जी हजरत, मैंने कहा तवज्जो से दीजिएगा, जरा तवज्जो से, अभी इसकी अंदर से निकालना है, इसके अंदर से तवज्जो से कीजिएगा। नाजायज करना है तो सोच के कीजिएगा। जी हजरत, क्या है? नाजायज है? आप क्या कह रहे हैं? नाजायज है जायज है? जी, जी हजरत, क्या कह रहे हैं? नाजायज है? अच्छा चले, जायज वाला भी कोई है? जो कहते हैं मुझे तो जायज लगता है ये, जायज वाला कोई भी नहीं है? चले ठीक है। अच्छा चलिए, एक तरफ अब थोड़ा सा भी देखते हैं। मैंने पैसे दिए और पैसे के बदले में मैंने कंपनी से उसकी खिदमत ली, ये कौन सा मामला है? ये बै, ये असल में इजारा है। जब आप किसी की खिदमत लेते हैं उजरत पर, मजदूर हो, कोई भी खिदमत हो, डॉक्टर हो, किसी की भी खिदमत लेते हैं, उस्ताद हो, किसी की भी खिदमत आप लेते हैं उजरत पर, ये क्या है? इजारा। तो आपने कंपनी को पैसे देकर क्या किया? उसकी खिदमत ले ली। पैसे पहले दिए, खिदमत आपको बाद में मिली। ये जायज है ना जायज? जायज है ना? चलो, अल्लाह का शुक्र, एक चीज तो जायज नहीं है। आगे चलते हैं। अब आपका बैलेंस खत्म हो गया, अब कंपनी कहती है खिदमत पहले ले लो, पैसे बाद में दे देना, लेकिन अब मेरी खिदमत के इतने पैसे होंगे। अब मेरी खिदमत के कितने पैसे होंगे? कितने पैसे होंगे? मैंने 20 बैग उठाए, तो मैंने एक बैग के 10 रुपए लिए। 21वें बैग का मैं तुमसे 10 रुपए नहीं 15 रुपए लूंगा। जायज है ना जायज? अब बताए। जी हजरत, जायज है? अब क्या नाजायज? अब नाजायज क्यों है? असल में इसमें शुबह किस वजह से आ रहा है कि इसको उधार समझ रहे हैं। ये उधार है ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो कंपनी ने आपको क्या दिया? पैसे दिए? नहीं। कंपनी आपको क्या दे रही है? कंपनी आपको खिदमत दे रही है। पहले ये था, पैसे पहले देती थी, खिदमत बाद में देती थी। अब कंपनी आपको ऑफर कर रही है कि मैं तुमको खिदमत पहले दूंगी, पैसे बाद में दूंगी, लेकिन चूंकि पैसे मैं तुमसे बाद में लूंगी, तो अब क्या होगा? ये पैसे मैं तुमसे पुराने रेट पर नहीं, नए रेट पर लूंगी। तो उसूली तौर पर क्या होना चाहिए? जायज होना चाहिए। ये सूद नहीं है। ये वो चीज है जिसको लोग समझ, इसमें एक शरीयत एतबार से इश्काल बनता है, जो मैं बताया कि आपको तवज्जो दीजिएगा जरा। शरीयत एतबार से इश्काल क्या बनता है? शरीयत एतबार से इश्काल ये बनता है, मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी चीज का मामला करेंगे उसमें उधार होगा, तो आपको क्या करना चाहिए? मुद्दत को मुतय्यन करें। अब कंपनी कहती है कि खिदमत पहले दे दो, पैसे बाद में देना, लेकिन कब देना? मुद्दत मुतय्यन। ये एक सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान बनेगा कि कंपनी ने आपको खिदमत तो दे दी, लेकिन उसकी पेमेंट और अदायगी का वक्त और मुद्दत मुतय्यन नहीं की। तो इस एतबार से इस पर सवाल ये निशान है। उसका भी उलमा किराम ने जवाब दिया, लेकिन इसको सूद नहीं कह सकते, ये सूद नहीं बनता शरई एतबार से। आगे चलते हैं।
किस्तों पर खरीदो फरोख्त की मैं आपको बता चुका। अच्छा आगे चलते हैं, मुराबहा रोल ओवर करना, ये समझने वाली बात। पहले तो समझिएगा कि मुराबहा किसे कहते हैं। आप मुराबहा किसी के जन्म में किसे कहते हैं? मुराबहा मुराबहा कहते हैं, देखिए अब मुराबहा की असल हैसियत क्या है। मिसाल के तौर पर आपको माल चाहिए, मिसाल के तौर पर आपको कपड़ा चाहिए, लेकिन आप मार्केट नहीं जाना चाहते, या आप मार्केट जाएंगे, आपको इस बात का खतरा है कि मार्केट में मैं सही कपड़ा नहीं खरीद सकती, तो आप मेरे पास आते हैं, कहते हैं आप कपड़े की मार्केट को अच्छी तरह जानते हैं, आप मेरे लिए चीज खरीद कर लेकर आए, और जो चीज खरीदेंगे मैं उसके ऊपर आपको इतना प्रॉफिट देने के लिए तैयार हूं। अब मैं वो चीज कपड़ा भी खरीदता हूँ, उसके ऊपर जो लागत और खर्चा आता है वो भी बताता हूँ, और अपना प्रॉफिट बताता हूँ। तो अपना खर्चा और अपना प्रॉफिट बताकर किसी चीज को खरीदना और आगे बेचना, ये क्या है? मुराबाहा। आम तिजारत में आप अपना प्रॉफिट नहीं बताते, मुराबाहा के अंदर आप क्या करते हैं? अपना प्रॉफिट बताते। ठीक है, जब ये बात समझ में आ गई, अब होता क्या है, अब ये इसको अच्छी तरीके से समझिएगा इस बात को। अब इस बात को थोड़ी सी तवज्जो के साथ इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब कंपनीज के अंदर भी जो इस्लामिक बैंक के साथ मामला चलता है, उसके अंदर भी कसरत के साथ मुराबाहा होता है। कसरत के साथ मुराबाहा क्यों होता है इसको भी समझ लीजिए। मैं अक्सर लोग कहते हैं कि ये आप जो शराकत पे काम क्यों नहीं करते, पार्टनरशिप पे काम क्यों नहीं करते, मुराबाहा क्यों करते हैं? उसकी वजह ये है, एक उसकी अमली वजह है। वजह क्या है तो समझिएगा। देखिए अगर कंपनी ने या बैंक ने किसी आदमी के साथ पैसे लगाए, अब उसमें नफा और नुकसान में शरीक हो गया, कल को नुकसान होता है और वो आदमी पैसे लेके भाग जाता है, तो बैंक के लिए हिसाब किताब करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बैंक क्या करता है कि मैं पैसे तो दे नहीं सकता, क्योंकि पैसे दे के पैसे कमाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सूद हो जाएगा। तो पैसे दे के पैसे नहीं कमा सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई आपके साथ तिजारती मामला करना पड़ेगा। तिजारती मामला क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या करेंगे? जी हमारी फैक्ट्री है, गारमेंट्स की फैक्ट्री है, हम कपड़े बनाते हैं, कपड़े बनाकर बेचते हैं, मैंने कपड़े बनाने, तो आपको कपड़ा चाहिए कि कपड़ा चाहिए, मैं मार्केट से कपड़ा खरीद के आपको बेच देता हूँ। जैसे मैं अभी गन्ने का आपको बता रहा था कि गन्ने खरीद के आपको बेच देता हूँ, तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। मैंने गन्ने को खरीद कर अभी बेच दिया, ठीक है, गन्ने को खरीद कर मैंने आगे बेच दिया, या बैंक ने क्या किया कि अभी उसने कपड़ा खरीद कर बैंक ने आगे मुझे बेच दिया, मुराबाहा हो गया। लेकिन ये एक दफा थोड़ी होता है, मुराबा चलता रहता है। अब इसमें ये मसला पेश आता है, जब आप एक ही बैंक से और एक कंपनी एक ही मामले में मुख्तलिफ किस्म का मुराबा, क्योंकि कपड़ा तो सीजन में बनता जाएगा, बिकता जाएगा, फिर सीजन आएगा, फिर कपड़ा लेंगे, फिर बनाएंगे, फिर बेचेंगे, तो हर दफा आपको क्या करना है? हर दफा आपको बैंक से रुजू करना है, बैंक कपड़ा खरीदेगा, आपको बेचेगा, तो ये सिलसिला चलता रहता है। वहां पर ये मसला पेश आता है, इसको तवज्जो के साथ। अच्छा इसमें देखिए, सबसे पहले उन्होंने मुराबाहा की तारीफ लिखी है। मुराबाहा की तारीफ क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट का मतलब क्या है? जो आपकी हकीकी कीमत है। प्रॉफिट का मतलब है जो आपका नफा है। तो मैंने बताया था मुराबाहा के अंदर क्या होता है, आप अपनी कीमत और नफा को बताकर आगे बेचते हैं। आगे देखिएगा, रोल ओवर करने की हकीकत यह है कि क्लाइंट किसी वजह से मुकर्रर मुद्दत पर वाजिबुल अदा रकम के अदायगी ना कर सका, अब वो फरोख्त करंदा से दरख्वास्त करता है कि इसे वही सामान दोबारा बेच दिया जाए जो सामान पहले फरोख्त करंदा ने इसे बेचा था और जिसकी कीमत अदा नहीं कर सका, और आइंदा पहले से तयशुदा रकम पर कुछ इजाफी रकम भी अदा कर देगा। ये सूरत मसला मेरे ख्याल से भी समझ में नहीं है, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने मसला बयान किया आपको, अब इसमें होता क्या है, ये है सर चीज जिसको समझने की है और शऊर बेदार करने की जरूरत है, जो कि यहाँ पे दो नंबरी बहुत होती है। इस्लामिक बैंक्स की बात कर रहा हूँ, इस्लामिक बैंक्स में यहाँ पर चूंकि अब निजाम को समझा नहीं, और अल्लाह का शुक्र है जो मुज़ाकरा आप लोगों से चल रहा है, ये मुज़ाकरा जब हमने लोगों से किया
तो बहुत से हमारे लोगों ने जाके बैंक वालों को पकड़ा, बैंक को पकड़ा कि भाई तुम यहाँ पे डंडी मार रहे हो, गलत कर दो। तो डंडी मारते किस तरह हूं मैं बताने लगा, होता क्या है। देखिए, अब एक चीज आपने खरीद ली, बैंक ने पहले खरीदी, मिसाल के तौर पे उसने 10 लाख रुपए का सामान खरीदा, कपड़ा खरीदा, और 10 लाख रुपए का कपड़ा खरीद के मुझे दे दिया। अब 10 लाख रुपए का कपड़ा मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, अभी वो कपड़ा इस्तेमाल नहीं हुआ कि बैंक के पैसे मैंने देने थे, तारीख आ गई। अब बैंक ये कहता है कि ऐसा करो कि ये कपड़ा मुझे बेच दो वापस, और फिर दोबारा मुझसे खरीद लो। दोबारा मुझसे क्या करो, खरीद लो, और खरीद कर नई कीमत तय कर लो। तो मेरा क्या होगा कि अब ये कि मुद्दत भी बढ़ जाएगी, तुमको मुद्दत भी मिल जाएगी, और मेरे लिए प्रॉफिट भी मिल जाएगा। मेरा मकसद क्या था, प्रॉफिट कमाना था ना। अभी इसमें नाजायज काम किया है, समझे नहीं समझे। पहली बात तो सारी सारी कागजी कार्रवाई होगी। पहली बात मसला क्या है कि एक चीज कंपनी के पास मौजूद है, कारोबारी के पास मौजूद है, हकीकत में बैंक उस कपड़े को उठा के उस पर कब्जा नहीं करेगा। तो पहली बात शर्त ये थी कि आप कपड़े को खरीद के वापस लेकर आते, उस पर कब्जा करते, तो आपने कब्जा नहीं किया। दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ अकाउंट सेटलमेंट करते हैं, अकाउंट सेटलमेंट करते हैं, खाते ठीक कर रहे हैं, खातों के अंदर रकम कर रहे हैं, ना पैसे पे कब्जा किया ना पैसे की अदायगी। और उसके तरीके से आपने क्या किया उसी को। तो ये कई कंपनीज में चलता रहता है कि कागज, अच्छा ये शरिया एडवाइजर के लिए पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। शरिया एडवाइजर आएगा तो क्या देखेगा, शरिया एडवाइजर आकर क्या देखेगा, पहले कागजात देखेगा। तो कागजात पूरे होते हैं, रसीदें पूरी होती हैं, इस तारीख पर ये सामान खरीदा गया, इस तारीख पर अदायगी की गई। तो वो सारी रसीदें और कागजात पूरे करते हैं। जो कागजात पूरे कर वो कैसे पकड़ेंगे ये मामलात में। तो ये चीज समझने की है, ये जो मामला, इसको रोल ओवर कहते हैं, ये जायज नहीं है। आगे उसको बयान के ऐसा करना जायज नहीं, क्योंकि इस सूरत में वो ऐसा सामान खरीद रहा है जिसका वो पहले से मालिक बन चुका है। अब अभी उसका मालिक पहले से मौजूद है और बैंक को देके दोबारा उससे खरीद रहा है। तो एक चीज आपकी मिल्कियत में पहले से है, बैंक की मिल्कियत में गई नहीं, आप उसको क्या कर रहे हैं, दोबारा से वापस खरीद रहे हैं। और जाहिर है कि अपनी ममलूक का चीज, यानी जो चीज आपकी मिल्कियत में पहले से है, दूसरे से ये कहना जायज नहीं कि मुझे ये चीज इतने में बेच दो। होता क्या है, सिर्फ ये उसमें। अब चूंकि कागजात के अंदर ही सिर्फ आप इन सारी चीजों को तय करके इजाफी रकम डालेंगे, तो वही वाली बात आ गई कि असलन पैसा किस चीज पर है, मुद्दत के आगे बढ़ने पर। याद आ गई ना आगे आप लोगों को, असल पैसा किस चीज पे है, क्योंकि जो मुद्दत थी उस मुद्दत में अदायगी नहीं हुई। जब मुद्दत में अदायगी नहीं हुई तो मुद्दत को बढ़ा दिया, और मुद्दत को बढ़ाकर कागजात का पेट भरने के लिए आपने कहा कि जी हमने माल को खरीद के दोबारा बेचा है। हालांकि ना माल को खरीदा गया, ना माल पे कब्जा किया गया, ना माल को वापस दिया गया, सिर्फ खाते के अंदर उसको करके आपने मुद्दत की वजह से पैसे बनाए। तो क्या बन जाएगा, ये ना चाहिए। ये कुछ बात समझ आ गई, आगे चलिए। ये बहुत अहम है। वैसे मैंने जो बात बताई थी आपको, उसके मुताबिक इसको समझना आसान हो जाएगा। एक साहब हमारे पास है, बहुत बड़े कारोबार है। उनका कारोबार होता है बुनियादी तौर पर, जैसे एसी वगैरह बना के बेचते हैं। वो कह रहे थे कि हमारा तो 100% काम तिजारत का है। मैं तवज्जो कैसे सुनी इस बात, कहने लगे कि हमारा तो 100% काम तिजारत का है। हम तिजारत करते हैं, हम तो उधार करते ही नहीं। अब सूरत मसला क्या बताई, सूरत मसला ये है कि हमने जैसे सर्दियां आ रही हैं, तो मार्च अप्रैल में हमें एसी चाहिए होंगे, जो हमारे एसी होते हैं, एसी चाहिए होंगे। तो अब ये फैक्ट्री वालों से ये मामला करते हैं कि आपने हमें एसी बनाकर देना है, और मिसाल के तौर पे 6 करोड़ रुपया हम आपके पास बतौर सिक्योरिटी के रखेंगे। 6 करोड़ रुपया सिक्योरिटी के तौर पे, एडवांस के तौर पर नहीं बल्कि सिक्योरिटी के तौर पर रखेंगे। और जो एसी 1 लाख रुपए का था, और वो 1 लाख रुपए का एसी जो होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को आप 1 लाख रुपए का देते हैं, हमें कितने का देंगे, 90,000 का देंगे। तो अब इस तरीके से, क्योंकि कंपनी के पास अचानक 6 करोड़ रुपए आ गए,
अभी तो पैसे की वैल्यू कम हो गई, अब 6 करोड़ क्या होता है, 12 करोड़ या 20 करोड़ कर दो, लेकिन पहले ज्यादा थी। तो कंपनी को फायदा यह है कि उसको पैसे मिल गए, वो ज्यादा माल बना के बेच सकता है, और चूंकि ज्यादा माल बना के बेच सकता है तो अब ये इनको भी डिस्काउंट दे सकता है। सवाल ये है कि इनका ये डिस्काउंट लेना जायज है नाजायज। ये पैसे देकर एसी लेंगे, पैसे सिक्योरिटी रखवा दी और सिक्योरिटी वापस मिल जाएगी, और एसी के पैसे अलहदा से देंगे। तो एसी के पैसे 1 लाख के बजाय 90,000 देंगे, जो हर एसी पे 10,000 रुपए का डिस्काउंट ले रहे हैं। ये जायज है नाजायज? जी हजरत, जो मैंने आपको बताया अगर आपको लगाएं, मैंने पीछे हमने सिक्योरिटी की जो शरई हैसियत है मैंने आपको अच्छी तरह से बताई थी। तो सिक्योरिटी की शरई हैसियत मैंने बताई थी, क्या थी? देखें, अगर आप लोगों ने लिखा है तो अपने पास देखिएगा कि सिक्योरिटी की शरई हैसियत क्या थी। इब्तिदाअन अमानत और इस्तेमाल करने तो क्या है, कर्ज है। तो कंपनी के पास कर्ज है, और कर्ज देकर आप उससे कहते हैं कि मुझे 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे दो, तो क्या बन जाएगा, सूद हो जाएगा। जब उनको बताया तो उनको छक्के छूट गए। ये मैं आपको हकीकी बात बता रहा हूँ, उनको सुन के, क्योंकि ये सूद है, सूद है, सूद बन जाएगा ये। तो ये खतरनाक सूरत हाल है कि सिक्योरिटी की वजह से ये लेना सूद बन जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। नए सोने के बदले पुराने सोने का तबादला का फर्क बराबर करना, ये मामला हमने कर लिया। न्योता देना, ये चले हम उसको बाद में करते हैं। आ जाते हैं आगे। अच्छा, कार्ड पर मिलने वाला डिस्काउंट। अब ये एक आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, आपसे भी अक्सर लोगों ने ये सवाल किया हो। कार्ड पर मिलने वाला डिस्काउंट, इसकी शरई हैसियत क्या है, तो पहले पढ़ लेते हैं दफा थोड़ा। 3 किस्म के कार्ड हो सकते हैं। गैर सूदी बैंकों का डेबिट कार्ड, सूदी बैंक के डेबिट कार्ड पर डिस्काउंट, सूदी बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट। अब ये 3 किस्म के, आप समझ गए ना? गैर सूदी बैंक से मुराद कोई भी आज के जो इस्लामिक बैंक चल रहे हैं उनके डेबिट कार्ड है। अच्छा, अब उनका एक अल फैसल वालों का नूर इस्लामिक क्रेडिट कार्ड भी आ गया। अल फैसल वालों का या अलाइट बैंक वाले भी लेकर आ रहे हैं। ये फिर अलग से लंबी पेचीदा फिकी बहस है। जो अब इस्लामिक बैंक क्रेडिट कार्ड लेकर आ रहे हैं, वो उसकी हकीकत क्या है और उसका जवाब कैसे है, ये अच्छी खासी अपनी जगह पे एक पेचीदा फिकी बहस है। वो फिर उठा के रखते हैं, अभी नहीं कर सकते। अभी फिलहाल जो कर रहे हैं, आप अगर आगे आ जाए तो पीछे बैठे हुए आगे बहुत जगह है। आप हजरात अगर आगे आना चाहें तो आगे आ जाए, बहुत जगह है। और वैसे भी 10-15 मिनट में हम अपनी बात गुफ्तगू को मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? आप हजरात का कोई सवाल होगा तो फिर देख लेते हैं इंशाल्लाह। असल में क्या करना आता है, इसको समझिएगा कि एक तो इस्लामिक बैंक का डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क होता है, तो बताएगा जल्दी से, ये तो आसान है, पता ही होगा आप लोगों को। डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क होता है जी? डेबिट कार्ड बुनियादी तौर पर जो आपकी रकम आपके अकाउंट में पहले से मौजूद है, वो पैसे आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, फौरन से आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में से इतने पैसे कट गए। तो डेबिट कार्ड में आप असलन अपने पैसों में से पेमेंट कर रहे होते हैं, बैंक आपकी तरफ से डेबिट कार्ड पे पेमेंट कर रहा होता है। डेबिट कार्ड की हकीकत यह है। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड हकीकत में एक बहुत बड़ा शैतानी चक्कर है। वो क्यों है शैतानी चक्कर, इसको समझिएगा। क्योंकि बैंक आपसे कहता है कि आप अपनी चादर से ज्यादा पाँव फैलाओ, क्योंकि जब चादर से ज्यादा पाँव फैलाओगे और चादर से पाँव बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, नई चादर चाहिए होगी ना। वो नई चादर हम देंगे आपको, ठीक है? तो जितने पाँव फैला सकते हो वहां तक पाँव फैलाओ, ताकि नई चादर की जरूरत पड़े तुमको। तो बैंक आपको इस बात पे तैयार करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करें। तो आपको एक सहूलत देता है कि आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, हमने आपको 50,000 रुपए की लिमिट रख दी। लिमिट का मतलब ये है
अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी आप 50,000 रुपए तक जाकर खरीदारी कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और अगर 1 महीने के अंदर अंदर आपने पैसे वापस कर दिए तो आपके ऊपर कोई इजाफी चार्ज नहीं। लेकिन 1 महीने के बाद अगर आपने नहीं किया तो आपने क्या किया जाएगा, पैसे वसूल किए जाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड की ये जो मामला है ये क्या है, शरअन जायज है नाजायज? अच्छा, यहाँ पे बाद लोगों ने कहा कि हम तो ताखीर करते ही नहीं है। एक साहब, जब मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में बयान कर रहा था, अरे आज तक कहते 1962 से मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1962 से लेकर आज तक कभी ताखीर नहीं की। सवाल यह है ताखीर की या नहीं की, लेकिन जब आप बैंक से क्रेडिट कार्ड का मामला कर रहे हैं तो उस क्रेडिट कार्ड के मामले के अंदर ये शर्त लिखी हुई है, ये शर्त लिखी हुई है कि अगर मैंने ताखीर की तो मैं क्या करूंगा, सूद दूंगा। तो गोया कि आप किसी न किसी सूरत में सूद की अदायगी पर क्या कर रहे हैं, रजामंदी का इजहार कर रहे हैं। तो सूद की अदायगी पे रजामंदी का इजहार करना भी क्या है, अभी आपको हदीस सुनाई थी, 4 आदमियों पे अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई, सूद देने वाले पर, सूद लेने वाले पर, सूद लिखने वाले पर, और सूद के गवाह बनने वाले पर। तो क्रेडिट कार्ड का मामला शरअन जायज नहीं। पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता क्या। अब आगे समझेगा कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट की क्या हकीकत है। अब आप मिसाल के तौर पे, बैंक ये चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे पास पैसे रखें, लेकिन वो पैसे क्यों रखेगा, उसे कुछ मिलेगा। तो कहते हैं हम आपको मुख्तलिफ किस्म की सहूलत देते हैं। तो सहूलत क्या है, कह रहे कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे मीजान बैंक का डेबिट कार्ड है और आप जी डॉट जुनैद जमशेद का जे डॉट पर जाके आप खरीदारी करते हैं तो खरीदारी पर आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्रैक्टिकली ये होता है। ये बाद रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट पे जाकर फैसल बैंक का डेबिट कार्ड दिखाएं या यूबीएल का डेबिट कार्ड दिखाएं, कोई सा भी डेबिट कार्ड दिखाएं, तो आपको 20%, कभी 25%, कभी 40% तक डिस्काउंट दे देगा बाद चीजों के ऊपर। अब ये क्रेडिट कार्ड पर भी डिस्काउंट मिलता है और डेबिट कार्ड पर डिस्काउंट मिलता है। सवाल ये है कि बैंक की तरफ से जो सहूलत आपको दी जा रही है और ये डिस्काउंट मिल रहा है, ये डिस्काउंट लेना आपके लिए शरअन जायज है कि नाजायज? ये सवाल समझ आएंगे। तो पहला हमने क्या काम किया, पहला हमने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की हकीकत को समझा। तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड समझ आ गया आप लोगों को, जरूरत आ गया। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट कैसे देता है बैंक और क्यों देता है ये भी समझ में आ गया। तो जब डिस्काउंट देगा तो लोग क्या करेंगे, आजकल हमारे पास में साथी आते, दर्श होता है, वो इकट्ठे हुए थे, कहने लगे थे कि हमने यूबीएल में, यूबीएल एक निकाला है, यूबीएल यूनाइटेड बैंक, उसने निकाला है, उसने निकाला है कि अगर आप हमारे पास 20 लाख रुपए रखें तो यहाँ पर बतानी है, ये लाहौर में है, वो जिम है शेप्स के नाम से, यहाँ पर है, लाहौर में है शेप्स। उसकी वैसे फीस 14-15 हजार रुपए है महीने की। आप स्विमिंग करना चाहते हैं, तैराकी करना चाहते हैं या वर्जिश करना चाहते हैं, लेकिन उसकी फीस 14-15। लेकिन अगर आप सिर्फ जाकर यूबीएल का कार्ड दिखाएंगे तो आपको 15 दिन फ्री मिल जाएंगे और सिर्फ 1500 रुपए के अंदर आप वो यूबीएल के कार्ड पर जा सकते हैं। 20 लाख रुपए आप रखवाएं यूबीएल के अंदर और शेप्स में आप जाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यूबीएल को फायदा क्या, ज्यादा लोग यूबीएल के ले रहे हैं कि पैसे तो रख रहे थे, यूबीएल में पूरा रख ले, पैसे तो रखने ही है ना। तो बड़ा बड़ा कारोबारी आदमी 10-15-20 लाख रुपए का तो कोई बात नहीं, रख लेते हैं और फैमिली कार्ड बन जाएगा। फैमिली कार्ड बन जाएगा तो एक घर के 3-4 अफराद बड़े आराम से जाएंगे और वर्जिश करके आ जाएंगे। तो अब ये बैंक को फायदा हो रहा है। अब उस बैंक बैंक अगर 14-15 हजार रुपए या जो भी उसने मामला तय कर दिया शेप वालों से, उस 20 लाख में कमाएगा कितना, वो तो कमा लेगा, बैंक खूब कमाएगा। तो बैंक की ये पूरी की पूरी चाल होती है जिसके जरिए से लोगों से पैसे इकट्ठे करता है, लोगों को डिस्काउंट देता है। सवाल फिर क्या है, सवाल घूम फिर के क्या आएगा कि डिस्काउंट जायज है कि नाजायज। ठीक है जी, अब आइए देखिए बस।
अब इसको थोड़ी सी तवज्जो के साथ देखने की जरूरत है। गैर सूदी बैंकों का डेबिट कार्ड, कन्वेंशनल बैंकों की तरह गैर सूदी बैंकों में भी करंट और सेविंग अकाउंट होल्डर को डेबिट कार्ड दिया जाता है। करंट अकाउंट सारिफ का मामला गैर सूदी बैंक से कर्ज था, जबकि सेविंग अकाउंट होल्डर का मामला मुजारबा मुशारता वगैरह की बुनियाद पर होता है। इस बिना पर गैर सूदी बैंकों के करंट और सेविंग अकाउंट से वाबस्ता डेबिट कार्ड का हुक्म अलग अलग लिखा जाता है। गैर सूदी बैंक के करंट अकाउंट से वाबस्ता डेबिट कार्ड की खरीदारी पर जब डिस्काउंट दिया जाता है तो अगर ये डिस्काउंट मुकम्मल तौर से बेचने वाले की तरफ से तो जायज है, क्योंकि ये सारिफ और बैंक के अलावा तीसरे शख्स की तरफ से जो आपका खातेदार है, डिपॉजिट होल्डर या कार्ड वाला है, उसको नफा पहुंचाया जा रहा है, जो कि कुल्लु कज़िन जर्रा नफअन में दाखिल नहीं, बल्कि तीसरे आदमी की तरफ से एक एहसान का मामला है। तो खुलासा क्या निकला? खुलासा ये निकला कि अगर ये डिस्काउंट बैंक की तरफ से नहीं है बल्कि उन रेस्टोरेंट की तरफ से या शेफ वालों की तरफ से या कंपनी की तरफ से है तो जायज, एक बात। लेकिन अगर ये डिस्काउंट बैंक की तरफ से हो तो उसमें इश्काल है कि बैंक की तरफ से मुकरिज सारिफ को असल रकम से जायद एक नफा दिया जा रहा है, जो कुल कर्ज जर्रा नफ्स में दाखिल होने की बिना पर नाजायज होना चाहिए, लेकिन यानी उसूली तौर पर उसको नाजायज करना चाहिए था। लेकिन दर्ज झैल वजूहात की बिना पर यह डिस्काउंट इस तौर पर कर्ज से मुंसलिक नहीं कि उसको कर्ज से नफा करार दिया जा सके। वजह क्या है? ये डिस्काउंट तमाम की तमाम डेबिट कार्ड होल्डर का करंट अकाउंट रखते हुए सेविंग के लिए होता है, जिसका मतलब वाज़ेह है कि सहूलत करंट अकाउंट होल्डर्स को कर्ज होने की हैसियत से नहीं दी जा रही, बल्कि बैंक का कस्टमर या अकाउंट होल्डर होने की हैसियत से दी जा रही है। इस डिस्काउंट की अदायगी या अदम अदायगी की मकदार सारिफ के अकाउंट में मौजूदा रकम बैंक के जिम्मे कर्ज है उससे बिल्कुल ये आज़ाद और ला ताल्लुक होती है। इस्लामिक बैंक में आपने कितने पैसे रखे हैं इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि जो भी आदमी बैंक में अकाउंट होल्डर होगा उसको सहूलत दी जाएगी। अकाउंट खोलते वक्त ऐसे किसी डिस्काउंट का जिक्र नहीं किया जाता, बल्कि ये मुकम्मल तौर पे बैंक की मर्जी है कि बाद में ऐसे कोई ऑफर दे या ना दे। ठीक है। हत्ता कि ऑफर का ऐलान मसलन एक माह के लिए डिस्काउंट करने के बाद भी बैंक कानूनन इस मदद की आखिर तक ऑफर बाकी रखने का पाबंद नहीं होता, बल्कि माहदे में ये बात दर्ज होती है कि बैंक किसी वक्त भी बगैर पेशगी इत्तला के इस ऑफर को खत्म कर सकता है। लिहाजा ये डिस्काउंट सूद के जुमरे में नहीं आता, क्योंकि सूद कर्ज पर मिलने वाले मशरूत नफा होता है जिसका कर्ज देने वाला मुतालबा करने का हक रखता है, जबकि यहाँ ये सूरत हाल नहीं होती। लेकिन चूंकि जाहिरी सूरत ऐसी मालूम होती है कि यह कर्ज पर नफा है, इसलिए पसंदीदा और एहतियात का मबनी अमल ये है कि इस डिस्काउंट से फायदा न उठाया जाए। अलबत्ता अगर किसी वक्त इसके डिस्काउंट को सिर्फ करंट अकाउंट के साथ खास कर दिया गया तो उससे इज्तनाब लाजिम होगा। अब दूसरी बात भी सुन लीजिए, मैं खुलासा बयान कर दूंगा। जो सारी बात लंबी तफसील आई है इसका खुलासा मैं अभी बयान कर दूंगा, लेकिन इसको समझ लीजिएगा। गैर सूदी बैंक के सेविंग अकाउंट से वाबस्ता डेबिट कार्ड पर जब बाय की तरफ से, यानी बाय का मतलब क्या हुआ, जो दरमियानी कंपनी है या रेस्टोरेंट है उसकी तरफ से डिस्काउंट दिया जाए तो उसका लेना भी बिलाशुबा जायज है। इसी तरह अगर ये डिस्काउंट बैंक की तरफ से हो तो भी इसका लेना सारे के लिए जायज है, क्योंकि ये सूद पर नफा लेना नहीं है। अच्छा, गैर सूदी बैंक के सेविंग अकाउंट में बात चल रही है, लेकिन सूदी बैंकों के सेविंग अकाउंट से वाबस्ता डेबिट कार्ड पर डिस्काउंट से, हाँ वो कंपनी की तरफ से हो या बैंक की तरफ से, फायदा उठाना जायज नहीं, क्योंकि इन अकाउंट में रकम रखवाना ही जायज नहीं। अलबत्ता करंट अकाउंट से वाबस्ता डेबिट कार्ड पर डिस्काउंट अगर मुकम्मल तौर पर कंपनी की तरफ से हो यानी बेचने वाले की तरफ से तो उसका लेना जायज है, लेकिन अगर ये डिस्काउंट मुकम्मल या कुछ मकदार में बैंक की तरफ से हो तो उससे फायदा उठाना मकरूह तहरीमी यानी कि नाजायज। सऊदी बैंकों से क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट इंतहाई नागुज़ीर हालात में, जब डेबिट काम काम न आ सकता हो और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जरूरी हो,
तो उसमें सूदी बैंकों से हासिल शुदा क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल कर डिस्काउंट से फायदा उठाना चाहिए, चाहे ये डिस्काउंट बेचने वाले की तरफ से हो या बैंक की तरफ से। अलबत्ता कन्वेंशनल बैंक से हासिल शुदा क्रेडिट कार्ड पर अगर सारे ऐसे मौके पर क्रेडिट कार्ड से अदायगी करके डिस्काउंट हासिल करें जहाँ सारे कोई और तरीका इख्तियार कर सकता हो तो ये जायज नहीं है। ये तो सारा का सारा मामला तय हो गया। और आखिरी चीज रह गई, उसको पहले समझ लीजिए। तो सारी गुफ्तगू की गई, उसको हम दोबारा से अपने वापस आते हैं इस बात के ऊपर कि यहाँ पर हमारा एक मामला था कि 3 किस्म के हमारे पास कार्ड थे। मैं खुलासा आपको आसान करके अर्ज करने लगा हूँ, तो टाइम भी हमारे पास तकरीबन खत्म हो रहा है। और आखिरी है गाड़ी, टोयोटा गाड़ी की खरीदो फरोख्त का मामला, उसको हम कर लेंगे तो आज हमारी प्रेजेंटेशन मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन इसको समझिएगा क्योंकि ये थोड़ी सी अभी टेक्निकल बात थी जिसको मैंने पढ़ तो दिया लेकिन समझना भी बाकी है। ये बात तो समझ में आ गई कि एक है इस्लामिक बैंक का डेबिट कार्ड, एक है सूदी बैंक का डेबिट कार्ड, और तीसरी चीज है सूदी बैंक का क्रेडिट कार्ड। अभी हम इस्लामिक बैंक के डेबिट कार्ड की बात करते हैं। इस्लामिक बैंक के जो डेबिट कार्ड है वो 2 किस्म के अकाउंट है। इस्लामिक बैंक में एक करंट अकाउंट है और एक इस्लामिक बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है जिससे बैंक कारोबार करके आपको नफा देता है। ठीक है। अब एक बात, अगर तो ये डिस्काउंट डेबिट कार्ड पर चाहे करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, ये डिस्काउंट अगर आपको दरमियानी कोई कंपनी या कोई ट्रेडर या बेचने वाला दे रहा है तो वो क्या है, हो जाएगा, क्योंकि तीसरे आदमी की तरफ से। तीसरा आदमी आपको अपना कस्टमर बनाने के लिए आपको अपनी तरफ से एक डिस्काउंट दे रहा है, तो गोया कि आपको आपके पैसों पर कोई इजाफी चीज बैंक नहीं दे रहा बल्कि तीसरा आदमी दे रहा है। ये जाएगा, इसमें समझ आ गई? इसमें तो कोई मसला नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। आगे चलिए। दूसरी बात अब ये तवज्जो के साथ सुनिएगा, जिसमें शिकाल हो रहा है, जिसका जवाब देने की कोशिश की है उसको जरा अच्छी तरह समझिएगा। इश्काल क्या हो रहा था कि अगर इस्लामिक बैंक में करंट अकाउंट में अपने पैसे रखें, इस्लामिक बैंक के करंट अकाउंट में पैसा कर्ज है क्योंकि मुझे उस पर कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि बैंक उस पर कारोबार करे या ना करे, नफा कमाए ना कमाए, मुझे मेरे पैसे इस्लामिक बैंक वापस कर दी, क्या है, कर्ज है। तो अब अगर इस पर बैंक की तरफ से अगर हमें दिया जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने कर्ज लेकर क्या किया, मुझे फायदा पहुंचाया। तो ये हदीस में जो भी बताया था कि कोई सा भी कर्ज जो आपको नफा दे वो क्या है, वो सूद है। तो इसी एतबार से इस्लामिक बैंक के डेबिट कार्ड पर अगर कोई आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो भी क्या होना चाहिए था, सूद होना चाहिए था, नाजायज होना चाहिए था। तो फिर इस्लामिक बैंक के शरई एडवाइजर ने, उलमा कराम ने उसकी इजाजत कैसे दे दी, सवाल है। अब अगर जो इतनी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं, आपके जहन में सवाल आ सकता है और जाके आपको सवाल शरई एडवाइजर से करना चाहिए कि भाई बाकी बात तो अपनी जगह पर, आपने करंट अकाउंट, जो करंट अकाउंट है ये तो कर्ज है, और कर्ज के ऊपर डेबिट कार्ड पर जो फायदा दिया जाएगा तो कर्ज पे नफा तो क्या होता है, सूद होता है। अब इसका जवाब दे रहे हैं। कहने की पहली बात यह है कि यहाँ पर आपको जो फायदा दिया जा रहा है वो फायदा पैसे की वजह से नहीं दिया जा रहा, बल्कि आप चूंकि बैंक के एक कस्टमर हैं और बैंक अपने कस्टमर के लिए उनके अकाउंट और पैसों से कतई नजर, उनके पैसों से और अकाउंट से कतई नजर क्या करता है, उनको सहूलत देता है। इसलिए बैंक क्या करता है, हर आदमी को एक अलग से सहूलत दे रहा है। अच्छा, दूसरी ये सहूलत लाजिम भी नहीं है, मशरूत भी नहीं है, हर एक को देगा, लाजमी देगा, आदमी मुतालबा कर सके ऐसा भी नहीं है, बल्कि वादे में लिखा होता है कि हमारी मर्जी है, जब चाहेंगे देंगे, जब चाहेंगे नहीं देंगे। तो इस वजह से क्योंकि ये मशरूत नहीं है और लाजिम नहीं है, बल्कि बैंक सिर्फ अपने कस्टमर्स को सिर्फ इस वजह से कि ये अकाउंट होल्डर है, चाहे कम हो पैसे या ज्यादा हो, इस वजह से वो उसको एक सहूलत दे रहा है। तो इसमें गुंजाइश का पहलू निकलता है।
لیکن جیسے ابھی کہا ساری تفصیل کے بعد کہ اس میں نہ لینا اور نہ استعمال کرنا یہ درست، یہ بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ کرے، ٹھیک ہے نا. یہ تو تھا غیر سودی بینک کی بات. سودی بینک، اب اگر سودی بینک ہے جیسے میں نے یو بی ایل کی بات کی، اگر وہ اپنے سودی بینک کے سیونگ اکاؤنٹ سے وابستہ ڈیبٹ کارڈ پر، اب اس میں بھی یہی ہے کہ اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے اور سیونگ اکاؤنٹ پر تیسرا آدمی آپ کو اگر ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے تو کیا ہے؟ جائز. چاہے سیونگ اکاؤنٹ ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ ہو، لیکن سیونگ اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ پہ اگر بینک دے رہا ہے اور خاص اماؤنٹ کے رکھنے پر دے رہا ہے تو یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوگا. آخری بات، اب اس کو دیکھ لیجیے گا اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالی، اب یہ ہماری تقریباً بات مکمل ہو گئی، اب پریزنٹیشن ہو گئی. اب یہ اس کو جو آخری بات آ رہی ہے اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ یہ بھی عام طور پہ غلط فہمی. ابھی صاحب مجھے ملے اور گاڑیوں کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے، ہم مثال کے طور پہ ٹویوٹا کمپنی والوں کو لے لیتے ہیں کہ اب ٹویوٹا کمپنی نے اگر آپ کے پیسے جمع کیے ہیں تو گاڑی کب ملے گی؟ 6 مہینے کے بعد. ٹھیک ہے؟ لیکن حکومت کہتی ہے کہ عام 1 مہینہ کے 2 مہینے سے زیادہ لوگوں کے پیسے نہیں رکھے. ٹھیک ہے؟ اب 50 لاکھ کی گاڑی آپ نے بک کروائی، 50 لاکھ کی گاڑی اصولی طور پہ حکومت کے قانون کے مطابق آپ کو 2 مہینے کے بعد ملنی چاہیے، لیکن وہ 50 لاکھ کی گاڑی آپ کو 2 مہینے کے بعد نہیں بلکہ 6 مہینے کے بعد ملی. تو جب 6 مہینے کے بعد آپ کو 50 لاکھ کی گاڑی ملی تو آپ کو بینک کی طرف سے 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا چیک بھی ملا واپس. اور بینک کہہ رہا ہے، آگے لکھا ہوا ہے، ہم نے اس پر ڈالا ہوا ہے، بینک اس میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو جو آپ کے پیسے رکھے تھے اس پہ سود دیا ہے. ٹھیک ہے؟ آگے چلیے گا، یہ دوسرا والا اس پر انہوں نے دیا ہے. At present, customers have to pay the full amount at the time of booking of cars, inclusive of duties and taxes, whereas the cars are delivered to customers after several months. In case of any price escalation. اچھا یہ تو یہ اس کے ساتھ اس میں انٹرسٹ لکھا ہوا نہیں ہے، ڈالا خیر اس کو چھوڑ دیں، اس کو بند کر دیں. اب اس میں بینک کہتا ہے کہ جی جو ہم نے پیسے آپ کے پاس رکھے ان پیسوں پر ہم سود آپ کو واپس کریں. اب سوال یہ کہ شرعی اعتبار سے سود بنتا نہیں بنتا، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں. دوبارہ سنیے گا صورت مسئلہ کیا ہے. اب اس کے بعد ہماری آج ختم ہوئی. میں نے گاڑی بک کرائی. اچھا گاڑی بک کرانے میں بھی پورے پیسے نہیں دیتے، 10-15 لاکھ روپے. 50 لاکھ کی گاڑی میں 10 لاکھ پہلے دے دیا اور جب 5واں اور 6ٹھا مہینہ آیا تو انہوں نے کہا جی آپ باقی بھی پوری پیمنٹ کریں تاکہ 6 مہینے کے بعد آپ کو گاڑی ڈیلیور کر دی جائے. تو 6 مہینے کے بعد جب گاڑی ڈیلیور کرنے کا وقت آیا تو اس نے مجھے گاڑی کے ساتھ کیا کیا؟ ایک چیک بھی دیا، اور یہ چیک یہ کہہ کر دیا کہ چونکہ آپ کے پاس آپ کے پیسے ہمارے پاس پڑے رہے اور ہم نے اتنے مدت میں آپ کو گاڑی نہیں دی، اس لیے کچھ پیسے ہم آپ کو سود کے نام پہ واپس کرتے ہیں. تو یہ جائز ہے ناجائز پیسوں کا لینا؟ یہ سوال ہے. جی جائز ناجائز ہے. اچھا، اور ناجائز والے کتنے ساتھی؟ جی ناجائز والے کتنے ساتھی؟ آپ کریں ناجائز، وہ بھی کریں ناجائز، ناجائز آپ بھی کریں ناجائز، اور کتنے ہیں ناجائز والے ساتھی؟ جی ساتھی کریں ناجائز، اور جائز والے کتنے؟ جی جائز والے کتنے؟ اچھا چلیے اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز یہ ہے کہ جو آپ نے 10 لاکھ یا 50 لاکھ روپے جمع کرائے وہ کس کے مقابلے میں تھے؟ گاڑی کے مقابلے میں. تو یہ کون سا ہے جو 4-5 چیزیں ہم نے پڑھی؟ قرض ہے، دین ہے، امانت ہے، سرمایہ کاری انویسٹمنٹ ہے، یا بے؟ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ پیسے تو دین ہے لیکن حقیقت میں یہ استثناء کا معاملہ ہے، یا آپ نے ایک چیز کو بنوایا آرڈر پر، بے کا معاملہ ہے. استثناء کا معاملہ ہے یا بے کا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، بے کا معاملہ ہے. اب بے کے معاملے میں ایک آدمی آپ سے گاڑی کے پیسے لے کر گاڑی واپس دے رہا ہے، تو گاڑی
पैसे पूरे लेकर गाड़ी देते हुए आपके पैसों में से कुछ कमी करके आपको वापस दे रहा है। अब इसकी शरई हैसियत क्या थी? कर्ज तो है नहीं ना, उससे तो पैसे लिए थे और गाड़ी देनी थी। पैसे लेकर आपने उसे गाड़ी देनी, आपने पैसों के बदले में कुछ नहीं देना, उसने पैसों के बदले में गाड़ी देनी थी। पैसों के बदले में गाड़ी तय हुई, उसने पैसों के बदले में गाड़ी दे दी। लेकिन पैसों के बदले में गाड़ी देकर उसने अपने 50 में से 1 लाख 2 लाख रुपए कम करके वापस कर दिया आपको। तो अब ये सूद कैसे? जो कर्ज का तो मामला ही नहीं हुआ यहाँ पर, कर्ज का तो। इसीलिए उलमा किराम, अब इसमें मुख्तलिफ राय है। ये जदीद मसाइल में अगर एक से दो राय हो तो मुमकिन होता है। मैं तो सिर्फ सोचने का अंदाज बता रहा हूँ, किसी चीज को तज्जिया करने का अंदाज बता रहा हूँ कि किसी चीज को सोचने का और उसके तज्जिए का अंदाज क्या होता है। तो यहाँ पर असल सोचने का अंदाज ये है कि जब आपने पैसे जमा कराए और गाड़ी दी, अब पैसे जमा करा के गाड़ी उसने देनी तो उसने गाड़ी दे दी, तो मामला क्या हो गया? पूरा हो गया, पैसे तय हो गए, गाड़ी मुतय्यन हो गई। वो मुतय्यन होती है, जब आपकी गाड़ी बुक होती है तो आपकी इंजन नंबर वगैरह बाकी चीजें सारी तय हो जाती हैं। तो ये ऑर्डर पे गाड़ी का बनवाना या बुक करवाना शरत जायज है। मुद्दत भी तय हो गई 6 महीने, तो सारी शरत पूरी होगी। जब वापस करने लगा तो उसने गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक कुछ पैसे आपको वापस किए। शरई एतबार से इसको डिस्काउंट कहते हैं, ये सूद नहीं बनता। शरई एतबार से हफ्ते समन बनता है कि ये बेचने वाले ने क्या किया, अपनी तरफ से प्राइस में कमी कर दी, कीमत में कमी करके आपको वापस कर दी। तो शरई एतबार से ये सूद नहीं बनता। यहाँ पे आके आज हमारी जो प्रेजेंटेशन थी ये मुकम्मल हो गई। और बस अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई मजीद कोई हजरात सवाल करना चाहते हैं तो सवाल कर लेते हैं। तकरीबन सारी बात हमारी मुकम्मल हो गई। जी जनाब। हमारे हजरत ने जो सवाल किया ना, ये बड़ा तफसील तलब। मैंने कहा कि आप हजरात इसके लिए अगर अलग से नशिस्त रखें तो हम आके इसमें तफसील से कलाम करेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग है क्या। अगर जो हमारे हजरत ने सवाल किया है कि कौन सा बैंक ज्यादा इस्लामी है, एक बात याद रखिएगा कि जो 100% सूदी निज़ाम है ये हराम है। 100% सूदी निज़ाम से निकलकर 100% इस्लामी निज़ाम की तरफ आने का सफर अभी शुरू हुआ है। इसीलिए हम इस्लामी बैंक को इस्लामी बैंक नहीं कहते, हम इस्लामी बैंक को क्या कहते हैं? गैर सूदी बैंक कहते हैं। इसमें इतना काम हुआ है कि सूद 100% खालिश सूद इसमें से खत्म हो गया है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा तरक्की और बहुत ज्यादा इस्लाह की गुंजाइश बाकी है। तो इसलिए मीज़ान बैंक है, ये अच्छा है। इस तरह के दीगर बैंक भी हैं, ये दीगर बैंकों से बेहतर है। इनके साथ मामला किया जाए तो हमारे बाज़ उलमा किराम के नज़दीक गुंजाइश है। बाज़ उलमा किराम कहते हैं नहीं कि आप बिल्कुल 100% एहतियात करें। और हम भी ये कहते हैं अगर कोई आदमी बचा हुआ है और बच सकता है और वो अपने बचने में खैरियत और आफियत समझता है, तो उसकी खैरियत और आफियत क्या है? बचने। किसी इंसान की कोई कारोबारी मजबूरी है या कोई बेवा खातून है, उसके पास और कोई नहीं है, वो जमा पूंजी बैंक में जमा करके कुछ थोड़े बहुत पैसे हासिल कर लेती है, तो उसके लिए गुंजाइश है। तो ये है अपना जी। ठीक। और ये बहुत अच्छा सवाल किया कि पता नहीं हमारी इस प्रेजेंटेशन में क्यों रह गया, ये हमारी इस प्रेजेंटेशन के अंदर क्यों रह गया ये मुझे अंदाजा नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल सवाल ये किया है कि जायज कैश अकाउंट में पैसे रखते हैं, और जायज वाला आपको ये कहता है कि जी अगर आप ये पैसे रख सिर्फ अकाउंट में पैसे रखेंगे तो इतने फ्री मिनट्स आपको मिलते रहेंगे। अब आप लोग बताइएगा कि ये जो पैसे आपने रखवाए जायज कैश में, तो जायज कैश में पैसे रखवा कर आप वापस पैसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो आपने पैसे दिए और पैसे देकर पैसे वापस मिल सकते हैं, तो ये क्या है? कर्ज है। और कर्ज देखने पर वो आपको एक कहना है कि मैं आपको इजाफी सहूलत दूंगा, तो ये क्या है? सूद है। ठीक है ना? इसलिए आपने अगर पैसे रखे हैं जरूरत के लिए
पेमेंट वगैरह के लिए या ट्रांसफर के लिए तो पैसे रखें, लेकिन सहूलत इस्तेमाल नहीं करें। जो फ्री नेट्स वगैरह की सहूलत है वो सहूलत इस्तेमाल नहीं करें। आगे जी, मैंने अर्ज किया ना कि आप वो अकाउंट में पैसे तो रखिए, अकाउंट में पैसे रखिए, लेकिन उसके मुकाबले में जो सहूलियत उसको मिल रही है फ्री नेट्स की, वो इस्तेमाल नहीं करें, उससे बचने की कोशिश करते हैं। जी, मैं वही कह रहा है ना, उसमें उसमें मसला ये है, आप फिर अलग सिम इस्तेमाल करें, एक सिम। जी, वो सिम को इस्तेमाल ना करें, पैसे रखें सिर्फ ट्रांसफर वगैरह के लिए, उसमें बैलेंस को इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना, तो उसी सिम इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल यह है कि घर या दुकान किराए पर देना और मालिक देते वक्त जो पगड़ी देता है, ये जायज है या नहीं? नहीं, पगड़ी जायज नहीं। ये पगड़ी का जो निजाम है हमारे पास, वो पगड़ी क्या होती है, पगड़ी को समझिएगा। पगड़ी ये होती है कि मैं इस जगह में बैठा हुआ हूँ, मैं इस जगह, ये मेरा ठिया बना हुआ है कारोबारी। अब एक आदमी, मैंने ये जगह छोड़नी है, मैं ये जगह इसको छोड़ूंगा जबकि तुम मुझे इसके पैसे दोगे। सवाल यह है कि पैसे किस चीज के ले रहे हैं? देखिए, पैसे जब भी आप लेंगे या तो किसी चीज के बदले में होगा या किसी खिदमत के बदले में। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तुम पैसे दोगे तो मैं जगह छोड़ूंगा, ये जगह छोड़ना कोई खिदमत नहीं है। तो इसलिए शरई एतबार से पगड़ी का जो लेना है वो दुरुस्त नहीं। अगर कोई किसी फैक्ट्री के साथ काम करता है, मसलन फैक्ट्री को 20 लाख रुपए देता है फैक्ट्री को, और महाना, और फैक्ट्री उस आदमी को महाना 50,000 रुपए देता है, तो सूद है या नहीं? अच्छा सवाल किया आपने। इसकी एक और सूरत भी बना दीजिए, ये अहम चीज है और ये हमारी प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए थी, उसको ऐड कर लेंगे। एक और चीज ये होती है कि अगर तुम हमें पैसे दे दो, अच्छा ये अच्छी नीयत के साथ भी होता है, ये जो बात मैं बताने लगा हूँ ये अच्छी नीयत के साथ भी होता है। अच्छी नीयत क्या है कि घर की खवातीन है, बूढ़ी खवातीन है, बहन है, बेवा है, मुतल्लका है, क्या तुम मुझे पैसे दे दो, कौन हिसाब किताब करेगा? 5,000 10,000 रुपए माना तुमको देता रहूँ, ठीक है, ये भी होता है। एक और चीज भी होती है कि तुम मुझे पैसे दे दो, नुकसान हुआ तो मेरा, नफा हुआ तो हम आपस में तकसीम कर लें, ये भी होता है। तीसरी एक और सूरत भी होती है, ये तवज्जो दीजिएगा। एक जगह कंपनी में गए, मैं अभी तक मुफ्ती फराज साहब भी थे हमारे साथ। अच्छा, उन उन हजरात का जज्बा सूद से बचने का इतना अच्छा था, उन्होंने कहा हम किसी बैंक वाले से मुलाकात भी नहीं करते, इस्लामिक बैंक वाले से भी मुलाकात नहीं करते। बहुत अच्छी बात। शराकत पर पार्टनरशिप पे बात चल रही थी, तो बात ये आई, चल रही थी कि बाज शुरका के लिए माहाना एक मुशाहरा और वजीफा तय होता है, वो काम करे ना करे, आए ना आए, कंपनी को नफा हो या ना हो, लेकिन उसको इतने पैसे माहाना मिलने ही मिलते हैं। हमने कहा ये सूद बन जाता है, तो सूद बन जाता है। वो तीनों, दो तीन भाई थे हैरान, एक दूसरे को देखने लगे, सूद बनता है? नहीं, बिल्कुल। क्योंकि देखिए बात क्या है, असल चीज, जैसे इन्होंने भी बताया कि सवाल किया कि फैक्ट्री वाले को 20 लाख दे दिया, अब फैक्ट्री वाले को 20 लाख पर नफा हो या नुकसान हो, इसको 50,000 क्या है पैसे पर, जब एक मुतय्यन रकम मिलनी ही मिलनी है तो क्या बन जाएगा? सूद बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास कारोबार किसकी बुनियाद पर है? नफा नुकसान की बुनियाद पर है, नफा हो या ना हो, लेकिन पैसे मिलने मिलने हैं, तो जितनी सूरतें मैंने बताई ये सूद बन जाता है। और ये जो शर्त लगाते हैं, पैसे दे दो, नुकसान हुआ तो मेरा, और अगर नफा हुआ तो मिलजुल के कर लेंगे, ये भी हराम है, नाजायज है। क्योंकि नफा है तो दोनों का है, नुकसान है दोनों का है। ये एक शरीक का कहना, कोई बात नहीं, नुकसान मैं बर्दाश्त कर दूंगा, ये शरीक एतबार से जायज है। शरीयत ने परसेंटेज में आपको पाबंद नहीं किया। हमारे भाई सवाल कर रहे हैं कि आप कारोबार करते हुए नफा रखने की कितनी फीसद और परसेंटेज कर सकते हैं, कितना नफा रख सकते हैं? शरीयत ने नफा रखने से आपको मना नहीं किया, बस इतनी बात। एक तो यह है कि नफा रखते हुए झूठ और धोखा नहीं। एक हमारे पास आम तौर पे इस्तेलाह है कि मैं तो अपनी खरीद पर बेच रहा हूँ,
تو जी मेरे बचत है ही नहीं। अच्छा बचत है ही नहीं तो क्या मतलब तुम हवा खा के पानी करके गुजारा करते हो? तो ये तो तुम्हारे सारे कारोबार चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही, घर चल रहा है, नहीं चलता है। तो ये हर कारोबारी की जबान को तो ये हराम ना जाए। अगर ये कह के बेचा कि जी मैं तो मेरी बचत है ही नहीं, मैं तो अपनी कीमत खरीद पर बेचूं, हालांकि नफा है, तो ये शरीय एतबार से नाजायज हो जाएगा। अलबत्ता झूठ ना हो, धोखा किसी का मजबूरी का फायदा उठाया जाए। अब एक आदमी मजबूर होकर आ गया, अब ये फंस गया, अब इसने खरीदना ही खरीदना है, तो मजबूरी का फायदा उठा के आपने उसका 100 गुना या 200 गुना फायदा उठाना ज्यादा कर दिया, ये नाजायज है। किसी का मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए, और झूठ और धोखा ना हो, तो आप मार्केट के मुताबिक जो भी नफा रखना चाहे रख सकते हैं। अच्छा सवाल किया आपने, ये सवाल अच्छा है। ये सवाल ये है कि हमारे विफाक में, जैसे अगर अभी चल रहा है, आखिरी तारीख अभी उन्होंने बढ़ा दी, वैसे विफाकुल मदारिस ने फीस की आखिरी तारीख को बढ़ा दी। अब कहते हैं कि जी अगर फीस में आखिरी तारीख तक आपने नहीं दिया तो डबल फीस देंगे। 540 रुपये फीस थी, तो फलानी तारीख तक देने की सूरत में क्या होगा? अब ये डबल फीस का मतलब बन जाएगा 1080 रुपये फीस देनी पड़ेगी। और अगर आपने उसके अलावा कर दिया तो क्या होगा? बल्कि 3 गुना फीस होगी। तो ये सवाल आया है कि अगर तो ये जायज नहीं है, ताखीर पर जुर्माना जायज नहीं है, तो विफाकुल मदारिस वाले ताखीर से जमा करने पे डबल या ट्रिपल फीस क्यों लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और अच्छी बात है। इससे पता ही चल रहा है कि अब सोचने का अंदाज चल रहा है, ठीक है। अब इसमें समझिएगा ये कि देखिए, एक चीज की दो कीमत हो सकती है, मैंने पहले बताया था। फीस मिसाल के तौर पे अगर आप ये रखते हैं, इसकी असल सूरत क्या बनती है समझिएगा। मैं अपने इदारे में रखता हूँ कि जी मेरी फीस 5,000 रुपए है। फीस कितनी है? 5,000। 10 तारीख तक जो जमा करवा देगा, तो उसको मिसाल के तौर पे 50% डिस्काउंट है। तो 10 तारीख तक जमा करने पर कितनी जमा होगी फीस? 2,500। कितनी हो जाएगी? 2,500। और अगर ये वो मुझे 20 तारीख से पहले पहले जमा करवाएगा, तो उसको 70% डिस्काउंट है। तो 70% का मतलब कितना बन जाएगा? तकरीबन 3,300 रुपये तकरीबन। ठीक है, 3,000 3,500 रुपये बन जाएगा। और अगर 20 तारीख के बाद जमा कराएगा, तो मैं पूरी फीस लूंगा, ये जायज। क्योंकि फीस कितनी है? 5,000। जल्दी अदा करने पे मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे जल्दी अदा करने पर क्या होगा? तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये जायज, ये कर सकते हैं। तो आपका जो सवाल था, आपका मुझे नहीं पता किसका सवाल था ये। जी, जिसका भी सवाल था, बहरहाल कोई बात नहीं, जिसका भी सवाल है ये विफाक वाला, तो उसमें गोया कि अगर वो फीस मुख्तलिफ रखते हैं। तो अब एक आदमी कहते हैं ना कि अगर आपने मुझे सुबह के वक्त बुलाना है, तो मैं सुबह के वक्त में, जैसे कसाई पहले दिन का क्या रेट रखता है? कसाई कहते हैं पहले दिन का क्या रेट है? 15,000 या 20,000। बड़ी बड़े जानवर की बात कर रहा हूँ। गाय अगर आप जिबा करवाएंगे, पहले दिन का रेट क्या है? 15,000। दूसरे दिन का रेट क्या है? 10,000। और तीसरे दिन का रेट क्या है? 8,000। अब वो उसने 2 और 3 दिन के रेट अलग कर दिए। तो अब निफाकुल मदारिस वाला जो कह रहा है वो ये है कि अगर आप हमें पहले देंगे, तो ये काम हम आपको इतने पैसों में करके दे सकते हैं। लेकिन अगर आप हमको पैसे बाद में देंगे, तो यही खिदमत फिर हम आपको इतने पैसों में देंगे। बात समझ में आ गई? तो मामला तय करने के बाद ताखीर से जुर्माना नहीं, बल्कि उसूली तौर पे वो आपके सामने शुरू से ही 2-3 ऑप्शन रख रहे हैं। पहली ऑप्शन क्या है? आप इस तारीख को हमारी खिदमत लेना चाहते हैं, तो इन तारीखों में हमारी खिदमत का रेट ये है, और इन तारीखों में हमारी खिदमत का रेट ये है। तो मैंने आपको जो कसाई की मिसाल दी, उससे समझने की कोशिश करेंगे तो बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जी, और कुछ सवाल? मुझे सवाल से बड़ी खुशी हो रही है वैसे आप लोगों की, माशाल्लाह से। इसका मतलब ये कि एमसीबी बैंक के बारे में वजाहत, एक तो ये बात समझेगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंकों को पाबंद कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंकों को कानूनी तौर पे पाबंद किया है कि आप अपनी एक इस्लामिक ब्रांच खोलेंगे। आप सूदी बैंकारी के साथ साथ क्या करेंगे? आप इस्लामिक ब्रांच या इस्लामिक विंडो भी खोलेंगे।
اس لیے تقریباً تمام الائڈ بینک ہو، MCB ہو، فیصل بینک ہو، الحبیب ہو، حبیب بینک آف پاکستان ہو، جتنے بینک ہیں سب کے پاس کیا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان کے اسلامک ونڈو کھل گئی۔ اچھا، وہ انہوں نے اسلامک بینکنگ کیسے کرنی، اس کا اسٹینڈرڈ طے ہے، جدہ کی فقہ اکیڈمی ایوفی اسٹینڈرڈ ہے، ایوفی اسٹینڈرڈ سے طے ہو کرتے ہیں۔ اب کون سا بینک کس درجے میں کر پاتا ہے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بینک کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو اس کے شریعہ ایڈوائزر کو دیکھیں ہمارے قابل اعتماد علماء کرام ہے کہ نہیں، کیونکہ اب چونکہ بھیڑ چال چل رہی ہے، قانون نے پابند کر دیا، تو قانونی پابندیوں کو پورا کرنے کے لیے بینک ہر قسم کے افراد کو لے آتے ہیں، اور جیسے میں نے مرابحہ رول اوور کے بارے میں کہا، پھر وہ اس میں ڈنڈی بھی مانتے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے شریعہ ایڈوائزر کون ہے، تو شریعہ ایڈوائزر اگر ہو تو ان سے آپ معاملہ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ یہ سوال پھر آیا وفاق المدارس کا ڈبل ٹرپل والا، وہ میں نے اس کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہمارے پاس لوگ جانور دیتے ہیں پالنے کے لیے، جانور دیتے ہیں اس کی قیمت فکس کر دیتے ہیں، سال ڈیڑھ کے بعد جب بیچتے ہیں تو بقیہ رقم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور اصلی قیمت مالک لے لیتا ہے۔ نہیں، یہ معاملہ مختلف ہوتا ہے، گاؤں کے اندر کثرت کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جانور تم لے لو، جانور میں نے تم کو دے دیا، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کا دودھ استعمال کرو، جو کچھ بھی کرو، جب قربانی کا وقت آئے گا تو اس جانور کو ہم بیچ دیں گے اور نفع کیا کریں گے، آدھا آدھا کر دیں۔ اچھا، یہ معاملہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ جانور آپ کا ہے، اگلے آدمی کی خدمت ہے۔ اچھا، اگلے آدمی نے جو خدمت کرنا ہے اس کی اجرت کیا طے کی، جب جانور کو بیچیں گے، اب ایک آدمی خدمت کر رہا ہے اور خدمت کر کے وہ کیا کر رہا ہے، چارہ بھی کھلا رہا ہے، خدمت بھی کر رہا ہے، دیکھ بھال بھی کر رہا ہے۔ کل کو اگر جانور مر گیا تو اس کو اجرت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک ایسا معاملہ کیا، ایک ایسے آدمی کی اجرت کا معاملہ کیا جس کی اجرت مجبول ہے، ہو سکتا ہے ملے اور ہو سکتا ہے نہ ملے۔ اس لیے یہ معاملہ کرنا شرعی اعتبار سے علماء کرام نے بتایا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اس معاملے کے جائز ہونے کی دو تین صورتیں اور بھی بتائی ہیں، وہ تفصیل ہے، وہ پھر شکل میں کروں گا۔ جی جی، شکر ہے، یہ سوال بھی آ گیا۔ کرپٹو کوائن کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں، اس میں تجارت کرنا، انویسٹ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز۔ مسئلہ آسان ہو گیا۔ اچھا، ناجائز کیوں ہے؟ پہلے ہی سمجھیے گا۔ ناجائز ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت ابھی تک کرپٹو کرنسی کو ایز اے کرنسی، کرنسی کے طور پہ اس کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ تو وجہ اس وقت پاکستان کے اندر کرپٹو کرنسی ایک ہوائی مخلوق ہے، اس کی کوئی حقیقی نہ اعتباری نہ عرفی نہ قانونی کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ قانونی اعتبار سے پابند ہے۔ دوسری بات یہاں پہ یہ سوال کہ کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی، کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی اور بٹ کوائن ہو، تو جتنی بھی کرنسیز ہیں یہ کیا کرنسی بننے کی صلاحیت رکھتی ہے نہیں رکھتی؟ حضرت مفتی تقی عثمان دامن خاتون کا ایک رائے آئی تھی اور مجھے ان کی رائے سے خاصی حد تک اتفاق ہے، ہماری تو خیر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے حضرت کے مقابلے میں، لیکن بہرحال ہمارا رجحان یہ ہے کہ اس کو جو ڈیجٹس ہیں، اب اگر یہ لمبی یہ بلاک چین، کوئی اگر آئی ٹی کا فیلڈ کا کوئی آدمی ہو، سے بات سمجھ میں آئے گی کہ کرپٹو کرنسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کاغذ کی طرح نکال کے دکھایا جا سکتا، نوٹ کی طرح، ڈیبٹ کارڈ کی طرح، چیک کی طرح اس کو دکھا نہیں دکھا۔ تو کرنسی ہے کیا چیز؟ وہ بیسیکلی فارمولا ہے، ڈیجٹس ہے اور بلاک چین ہے، بڑا بڑا ایک وہ اس کو بنا کر وہ چیز بناتے ہیں، فارمولا کے طور پر ہوتا ہے، وہ نمبر آپ کو الاٹ ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہو گئی، آپ کی ہو گئی، اس کی پھر وہ ویلیو لگاتے ہیں، وہ صرف کمپیوٹر کے اندر ہے۔ آپ اس کے ساتھ کوئی چیز خرید کر دکھا دیں تو الگ بات ہے، ورنہ اس کرنسی کو دکھائیں تو اس کا کوئی خارج میں وجود نہیں، نہ کاغذ کی شکل میں، نہ پیتل کی شکل میں، نہ کسی شکل میں۔ تو کیا اس کے اوپر مال کی ڈیفینیشن، مال کی تعریف صادق آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بظاہر مشکل لگتا ہے، لیکن بڑا جدید معاملات ہیں،
बहुत सी चीजें ऐसी है जैसे कॉपी राइट्स है, गुडविल है, बहुत सी चीजें, रॉयल्टी है। पहले इनको कोई माल तस्वुर नहीं करता था, हुकूक मुजर्रद था, आज इनको माल तस्वुर किया जाता है। तो आगे चलकर इस पर क्या फिकी बहस होती है, क्या फिकी शक्ल अख्तियार करती है, वल्लाहु आलम। लेकिन अभी तक जो बात समझ में आती हुई है कि बजाय क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना जायज नहीं है। पाकिस्तान कर्जा सूद पर लेता है और वो पैसे हमारे मुल्क में इस्तेमाल होते हैं, और उन पैसों से हमारा मुल्क अशिया खरीदता है। इन अशिया का इस्तेमाल करना और फिर उनसे इबादत पढ़ना वगैरह कैसा है? ये एक लंबी बहस है। इसमें मेरे ख्याल से ये जो सवाल किया है, उलमा और तलबा इस बात को समझते हैं, एतबार सबब करीब का है, ना कि सबब बईद का। सबब करीब और सबब बईद क्या है, तो समझेगा। मिसाल के तौर पर आपकी एक बेकरी है, आपकी बेकरी है, आपके पास डबल रोटी है, आप दूध बेचते हैं, दही बेचते हैं। आपके पास एक थानेदार आता है डबल रोटी खरीदने के लिए। आप उसको डबल रोटी बेचेंगे, वो डबल रोटी खाएगा, ताकतवर हो जाएगा, ताकतवर होकर जाएगा, जाके थाने में छितर लगाएगा। तो क्या थानेदार को डबल रोटी बेचना जाए? सवाल है ना। पुलिस वाले को दूध बेचेंगे, वो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, ताजा दम होकर जाके फिर चित्तर लगाएगा। तो क्या दूध पुलिस वाले को? नहीं। शरीयत में सबब करीब या बराह रास्त ताउन अलल मआसी को हराम कहा है। बराह रास्त अगर आप मासियत और गुनाह के काम में किसी के मददगार बनते हैं तो जाएगी। अगर आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सूदी पैसे के लेने देने में माविन बन जाए या सूदी मामलात में माविन बन जाए, फिर तो नाजायज। लेकिन गवर्नमेंट अगर पैसे लेती है तो गवर्नमेंट जो मामला कर रही है IMF से या वर्ल्ड बैंक से, ये हराम है, नाजायज। लेकिन पैसे सारे के सारे नाजायज हैं, ऐसा नहीं होता। पैसे नाजायज है, मामला नाजायज है, लेकिन गवर्नमेंट के पैसे नाजायज है, और गवर्नमेंट जितने प्रोजेक्ट लगाएगी वो नाजायज है, और आदमी का उनसे फायदा उठाना नाजायज है, और उस मुल्क में रहना नाजायज है। ये बात उसूली तौर पे दुरुस्त हुई। ठीक है। मुफ्ती इनामुल हक कासमी साहब का तिजारत के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन इनके कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, हज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, ये मैंने देखा है और बहुत अच्छा है। तो कुर्बानी के मसाइल का तो हम आमतौर पे कुर्बानी के जब अयाम आते हैं तो उसको इस्तेमाल करते हैं। हज के मौके पर भी हम उनका इंसाइक्लोपीडिया इस्तेमाल करते हैं। तिजारत के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मेरा एक इल्मी शख्सियत है, अच्छा काम किया होगा तो मेरे ख्याल से बिल्कुल उससे आपको इस्तेफादा करना चाहिए। कुछ किताबें बता दें तिजारत से मुताल्लिक। तो देखिए बहुत सी किताबें अब लिखी जा चुकी हैं, खास तौर पे उर्दू। हमारे पास एक उलमा तलबा के लिए कि भाई आप हजरात खास तौर से एक तो अरबी कुतुब की तरफ आए। अरब उलमा किराम ने जदीद मसाइल में बहुत काम किया, तो जदीद मसाइल के लिए अरब उलमा की तरफ आए, ये मैं तलबा से कहूँगा। और जदीद मसाइल के लिए फ़िक़्हुल बुयू और मयार शरिया, जो फ़िक़्ह के स्टैंडर्ड्स हैं उसको खास तौर से पढ़ने की कोशिश करें। इसी तरीके से शरहुल मुजल्ला है। जदीद उर्दू किताबें अपनी जगह पर हैं। अगर आप तलबा के लिए बता रहा हूँ, उलमा तलबा के लिए, अगर आप अपनी इस्तेदाद बनाना चाहते हैं इन मसाइल के अंदर, तो ये तीन किताबें आपके लिए लाजिम। इन तीन किताबों के बगैर नहीं हो सकता। एक मआयिर शरिया, फ़िक़्हुल बुयू मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, और शरहुल मुजल्ला। तो जो शरहुल मुजल्ला है, ये मुजल्ला का जो शरह है आमतौर पर मिलती है। ये तीन किताबें आप मजबूती से इनको पढ़ेंगे। बाकी उर्दू के अंदर तो बहुत सा जखीरा है, जैसे मैंने कहा जदीद फ़िक़्ही मबाहिस है, 25 जिल्दों के अंदर मौजूद है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के फ़िक़्ही मक़ालात हैं वो मौजूद है। जवाहिर फ़िक़्ह मुफ्ती शफ़ी साहब की, उसके अंदर बहुत से मज़ामीन आपको मिल जाते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के अदालती फैसले हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत से मवाद उर्दू ज़बान के अंदर भी अब मौजूद है, जिसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जी। मुझे आप दस दे दें तो मैं आपको 1 साल के बाद वो कर्ज दे दूंगा। तो ये 1 साल का आपका इस सूरत में मतलब गुजरेगा कि मेरा फलां जगह, हाँ, तो उसका जो किराया है ना महीने का वो भी आप सूद बन जाएगा। तो सीधा सीधा ये जो मसला बयान कर रहे हैं, एक साहब ने कर्जा लिया, लेकिन साहब को ये कह दिया कि मेरे घर का जो किराया आएगा वो आप ले लीजिएगा। तो क्या बन जाएगा? आसान है ना? क्या बन जाएगा?
सीधा सीधा शुरू कर देगा। जी हाँ। नहीं, कौन सी आप ये ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, ये आप एलसी की बात कर रहे हैं? नहीं, ये ठीक है, जायज है। ये सवाल कर रहे हैं कि बैंक ने आपके पर लगाई है, एक लिमिट लगाई है कि अगर आप इतने पैसे इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम आपसे चार्जेस नहीं लेंगे, और अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हम आपसे चार्जेस लेंगे। तो चार्जेस है। चार्जेस का मतलब ये होता है किसी चीज की, यानी आपकी जो चेक बुक है, बाकी चीजें हैं, उसके रखने के वो मुआवजा आपसे ले रहा होता है। तो अगर वो किसी वजह से आपके मुआवजे को छोड़ दे या उसको माफ कर दे तो वो जायज कर सकता था। जी, ये इन्होंने भाई एक नया एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ये अमेजोन के ऊपर, दराज के ऊपर ड्रॉप शिपिंग होती है। मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। अहम सवाल किया तो फिर मौका है 2-3 मिनट हमारे पास अभी करके। अब ये आखिरी सवाल है, इंशाल्लाह दुआ कर देते हैं उसके बाद। लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे खुशी हो रही है कि माशाल्लाह आप हजरात अच्छा सवाल कर रहे हैं। सवाल ये कर रहे हैं, आजकल दराज में अमेजोन वगैरह पर काम ये होता है, एक तो ये है कि आपने एक चीज खरीदी, मिसाल के तौर पे सियालकोट से आपने लेदर जैकेट्स बनाई, लेदर के पर्स बनाए, लेदर के वॉलेट बनवाए, अब ये चीज आपके पास स्टॉक मौजूद है, उसकी तस्वीरें आप अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, लोग आते हैं, आपको ऑर्डर देते हैं, आपसे खरीदते हैं, वो चीजें आप उनको डिस्पैच कर देते हैं, भिजवा देते हैं। इसमें तो शरीयत पर कोई चीज जायज नहीं है। एक चीज मौजूद थी, एक आदमी ने आपसे पूछी, रेट तय किया और आपने उसको भेज दिया, इसमें इश्काल नहीं है। इश्काल कहाँ होता है? जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग असल में कब होती है? ड्रॉप शिपिंग होती है कि मेरे पास चीज नहीं है, मैंने कुछ लोगों से रब्ता किया और उनसे मैंने मामला किया, मैं आपकी चीजें दूंगा, और मैंने उसकी तस्वीर लगा दी। अब एक आदमी मेरे पास आके कहता है कि ये चीज मुझे दे दो, मैं तो ठीक है तुमको मैंने भेज दी। अब वो मैंने उसको बेच दी, अब उससे मैंने पैसे वसूल कर लिए या कैश ऑन डिलीवरी का मामला कर लिया कि जब वो चीज आपको मिलेगी, पहुंचेगी तो तुम पेमेंट कर देना। लेकिन मेरे पास एक चीज अभी थी ही नहीं, तो मैंने उसका मामला कर लिया। तो ये जायज है नाजायज? क्यों कहते हैं नाजायज है? क्योंकि नाजायज है क्योंकि एक चीज मेरे पास अभी मौजूद ही नहीं है, मेरा उसके ऊपर कब्जा ही नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? उसको बेच रहा हूँ, नहीं बेचे। अब इसके अलावा जो दूसरा काम आप कर सकते हैं जो है जायज है, वो बहुत आसान है। आप कह लें कि ये चीज आप लिख के लगा दें कि विल बी अवेलेबल ऑन ऑर्डर, अवेलेबल ऑन बुकिंग एंड ऑर्डर, कि अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, ये आइटम इन स्पेसिफिकेशन के साथ और इन तफसीलात के साथ ये आपको ऑर्डर पे मिल सकती है। तो आप कहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है मुझे ये चीज बुक कर लो, आप कहते हैं ये चीज मैंने आपका ऑर्डर बुक कर लिया, इतने दिन के बाद आपको डिलीवरी मिल जाएगी, ये जायज, क्योंकि आपने ऑर्डर बुक किया है, चीज को बेचा नहीं है। और वो चीज जब उसके पास पहुंचेगी और उस सूरत में कोशिश ही होनी चाहिए कि फिर कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी में फिर बाकी जो कबाहतें हैं वो बाकी नहीं रहेंगी। तो कैश ऑन डिलीवरी हो तो वो करना फिर उसके लिए जायज। अगर तो आखिरी सवाल था, अगर किसी बंदे के पास नाजायज पैसे हैं और मेरे पास फैक्ट्री है और वो मेरी फैक्ट्री में पैसे लगाना चाह रहा है और मुनाफे 50% देना जायज है, फैक्ट्री मेरी है, पैसा उसका है, लेकिन मुझे पता है उसके पास पैसा नाजायज है, तो उसके साथ कारोबार करना, अगर ये बात तयशुदा है कि वो आपको नाजायज पैसे ही देगा, उसके पास जायज पैसे नहीं है, वो नाजायज पैसे ही देगा, और ये बात आपको पहले से पता है, तो उसके पैसे लेना आपके लिए जायज नहीं। ठीक है। हाँ, एक आदमी के पैसे मखलूत है, जायज पैसे भी है, नाजायज भी है, और वो ये मुतय्यन नहीं करता कि मैं नाजायज पैसे आपको दे रहा हूँ, उसमें उन्होंने कराम ने गुंजाइश की है। लेकिन जब ये बात तयशुदा है कि उसके पैसे नाजायज हैं और वो नाजायज पैसे आपको दे रहा है, तो उन पैसों को कारोबार में लगाना जायज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा।
جی جی دیکھیے یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے. کبھی بھی کسی بھی آدمی کی اگر تاخیر ہوگی، کسی بھی چیز میں اگر ادائیگی میں تاخیر ہوگی، تو جس کو پیسے لیٹ ملیں گے اس کے ساتھ زیادتی تو ہوگی. لیکن ذاتی کا یہ حل نہیں ہے. کسی چیز کی ذاتی کا یہ حل نکالنا کہ چونکہ اس نے میرے ساتھ ذاتی کی، اب اس کی تلافی اس طریقے سے کی جائے، یہ بات درست نہیں. جو تلافی کرنے کا طریقہ کار نکالا گیا ہے، وہ تلافی کا یہ طریقہ کار درست نہیں. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تلافی کا صحیح طریقہ کار نکالا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی تلافی کا صحیح طریقہ کار نکالا جائے، اور وہ علماء کرام سے بیٹھ کر ان سے مشورہ کر کے اس کا صحیح طریقہ کار نکالا جا سکتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس ناجائز صورتوں کی کثرت ہے، اب ہمیں ناجائز طریقہ کار ہی واحد حل نظر آ رہا ہوتا ہے. جو ایسے آپ نے بیان کیا، اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اب اگر میں اس کو قرض دوں گا اور وہ اگر مجھے قرض واپس نہیں کرے گا تو پیسہ تو 2-3 سال کے بعد اس کی ویلیو کم ہو جائے گی، میں کیا کروں گا؟ تو ہم نے کہا بہت آسان سا حل ہے، آپ اس کو پیسہ روپوں کے اندر قرض دو ہی نہ. آپ سونے کے اندر یا ڈالر کے اندر یا کسی اور کرنسی میں کسی جنس کی شکل میں قرض دے دو. بھائی شریعت نے تو نہیں کہا نا کہ آپ روپے کی شکل میں قرض دو، آپ کسی اور چیز میں قرض دے دو جو اسٹیبل ہے. اب حل موجود تھا لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کے اوپر سوچا نہیں. تو وہ بات آپ کی. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں اس نے اجرت نہیں دی، وہ اس نے ناجائز کام کیا، حرام کام کیا. لیکن اب میں یہ کہوں کہ چونکہ اس اجرت کو تم نے تاخیر سے دیا ہے، اس وقت دیتے تو اتنے پیسوں میں اتنا سونا آ جاتا. اب تم نے اتنی اس میں تاخیر کر دی ہے، اب سونے کا ریٹ یہاں پہ چلا گیا ہے، اس لیے اب اتنے پیسے تو یہ جائز نہیں. یہ تو وہ اگر طے کر لیں، اگر یہ کہتے کہ مجھے 60,000 مت دو، 60,000 کے بدلے میں مجھے بائک دے دو، یہ جائز ہو جائے گا. آپ نے اس سے پیسے نہیں مانگے، اس نے کہا کہ مجھے 60,000 مت دو، اس 60,000 کے بدلے مجھے بائک دے دو. کہتے ٹھیک ہے میں تم کو 60,000 نہیں دیتا، بائک دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ ہمارے دوست احباب، ہمارے علماء کرام، اللہ ہمارے میزبان مولانا عامر صاحب، ان کے والد محترم، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرما، ان کے مسائی میں، ان کی صلاحیت میں، ان کی یا اللہ وسائل میں، یا اللہ ان کے اموال میں، ان کی اولاد میں، ان کے گھر میں، ان کے شاگردوں میں، ان کے تمام اداروں میں اللہ برکت نصیب فرما. یا اللہ جتنے ہمارے حاضرین، ہمارے بزرگ علماء طلبا موجود ہیں، یا اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات اور رکاوٹوں کو دور فرما، تمام نیک مقاصد کی تکمیل فرما. آمین یا رب العالمین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المختار وليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. صلى الله عليه خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمته.